Good evening, everyone, and welcome to this group discussion organized by the ECEL of IIIT Lucknow. In this group discussion, we have included not just the ECEL members, but everyone. And with this, we hope to make every student of this college economically aware. This is an interactive session in which all of you are free to voice your opinions, have a discussion, have a debate, or if you're not comfortable with that, just listen and learn. The topics that we'll discuss here will include the various payment mechanisms like debit card, credit card, MasterCard, Visa, RuPay, or the UPI methods which include Google Pay, Paytm, PhonePe, and many more. We'll also discuss the new policies which have been introduced, the old policies which have been tweaked and are now being used in a different format, or the policies which have simply been removed. Now, all of this will be done in a very civilized manner. So I request all of you to please cooperate. And with this very general introduction, I request Karthik to begin with the discussion. And I also request all of you to please actively participate and make this GD a successful one. Karthik, over to you. Me and Karthik are the one who were about to discuss credit and debit card. So I am Dhananjay. I would be talking And I about am it. Karthik. Yes. First of all, like what is debit card and credit card? So जब भी हम मतलब हमको पैसे लगते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है, whenever we need money, so we go to ATM banks. और हम एक कार्ड होता है उसको इंसर्ट करके पैसा निकाल लेते हैं। टू मतलब कुछ भी यूज़ हो सकता है उसके लिए। सो वो जो कार्ड होता है वो होता है अपना डेबिट कार्ड। और लाइक अगर हमारे अकाउंट में इनफ पैसा नहीं हो या फिर हम कहीं मॉल में जाते हो और पैसा कैरी करके नहीं आते तो उस टाइम पे हमें क्रेडिट कार्ड बहुत लाइक बेनिफिट देता है। सो इन सच सर्कमस्टेंसेस वी यूज क्रेडिट कार्ड लाइक जस्ट we swap and we pay the bill whatever we need. So like this board on the means in general note they are used as such. So like what was the need for like debit card and credit card? Like पहले ऐसा क्या होता था कि जो अभी अभी हो मतलब पहले ऐसा क्या नहीं होता था जिसको ओवरकम करके ये दोनों का यूज होने लगा। सो like पहले क्या होता था कि बैंकों में जाना पड़ता था, जो भी अपनी नियरेस्ट ब्रांच होती थी बैंक की, तो वहां पे जाकर हमें एक विड्रॉ फॉर्म होता था उसको भरना पड़ता था और पैसे निकालने पड़ते थे। तो ये जो प्रोसेस रहती थी ये बहुत इनफेक्टिव रहती थी। लाइक लंबी लंबी लाइनें लगती थी पहले बहुत ज़्यादा। और ऊपर से लाइक बैंक हॉलीडेज के दिन तो बैंक चलती ही नहीं थी। और लाइक नाइट शिफ्ट तो होती ही नहीं थी, दिन में ही चलता था बैंक। सो ऐसे सर्कमस्टांसिस में लाइक कॉमन मैन को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो उसके बाद एटीएम इंट्रोड्यूस हुआ और फिर आए लाइक ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। So like talking about like their pros and cons, like debit card like in general don't have any cons, like इसके उसके कोई मतलब like harm ऐसा कुछ है ही नहीं। like if you have a bank account and उस बैंक अकाउंट में आपके पैसे है so you are good to go. So मतलब use the debit card in whichever ATM you want to go. So I am emphasizing here the word whichever, like you can go to any ATM, like whether it is belonging to ICICI, whether it is SBI, whether it is SDFC. So it might like it like make arise a question in your mind, like how this is possible, like अपना अकाउंट तो if in case like अपना अकाउंट तो SBI में हो शायद, तो मैं HDFC के ATM से कैसे पैसे निकाल सकता हूँ? सो लाइक इसके लिए ना लाइक कॉर्नर में जो एक लोगो होता है जिसको लाइक कहीं ने देखा होगा उसको, तो लाइक इट इज़ लाइक वीज़ा का होता है, मास्टर कार्ड का होता है, या फिर इन केस लाइक रुपे का होता है। ये तो जो ये लोगो होते हैं, तो ये लोगो होते हैं कार्ड नेटवर्क्स। तो इनके यूज़ से हम ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइक किसी अलग बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, सो देयर आर मेनी। लाइक प्रोज की बात करें तो सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं हो, लाइक इफ योर बैंक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 500 रुपीज और आपको इंस्टेंट बिल पे करना है, सो इन लाइक इंस्टेंट बिल पे करना है और लाइक बिल हो शायद से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो शायद से उसका लाइक 1500 का बिल पे करना है, या फिर कहीं इंस्टेंटली कोई काम आ जाए, लाइक मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इन सच केसेस क्रेडिट कार्ड प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। बट ऐसा नहीं है कि ये फ्री में मिल जाते।
सो इसको पे भी करना पड़ता है लाइक विथ इंटरेस्ट के साथ. सो लाइक बैंक प्रोमोट, दैट्स व्हाई बैंक प्रोमोट्स क्रेडिट कार्ड मोर, बिकॉज ये लाइक उनको ही बेनिफिट करता है, लेस मतलब अपने को कम करता है. क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें लाइक एक लिमिट होती है जिसको क्रेडिट लिमिट बोलते हैं. इतने लाइक दैट इज लिमिट कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो. सो वो क्रेडिट लिमिट एक्चुअली डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम एंड लाइक योर पास्ट लाइक परफॉर्मेंस. लाइक आप टाइम पर सब जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ पे करते हो या नहीं, इस हिसाब से आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो डिसाइड होती है. एंड प्लस और जो बात है लाइक क्रेडिट कार्ड की, सो लाइक इफ वी विल टॉक अबाउट लाइक कॉन्स, लाइक क्रेडिट कार्ड का क्या कॉन्स है, लाइक इसकी क्या मतलब हार्म क्या है इसका. सो इन केस इफ अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, तो क्रेडिट कार्ड का कैसा होता है, जैसे डेबिट कार्ड में एक पर्टिकुलर लाइक जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो अपने से पिन मांगता है. तो पिन तो पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को याद रहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. इसको बस स्वैप कीजिए, पैसे बैंक पे कर देंगे आपके बिहाफ पे. सो इन सच केसेस लाइक इफ आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, सो लाइक कोई भी आकर लाइक आप आपके बिहाफ पे या आपकी बैंक से पे कर देगा पैसा. सो इन such cases like you have to report to the banks instantly within like I think 3 days, so that it won't create much like bigger issue. So that's like a basic introduction about credit card and debit card. So if you have any like more doubts or anything, you could ask. So let me continue with that. Like, Yeah, you can go with the doubts. Yes. if you have any doubt or else you want to add some additional point also, like Yes, something special, you are like invited. something unique, you are invited to speak. No? It's a GD, so like It's like a group discussion only. You even are allowed to speak. No, like Yeah, you can you unmute are here and to then share your ask knowledge. your No? doubt. जो लोग सबसे Ask ज्यादा your doubt. पार्टिसिपेट Share your करेंगे knowledge. उनको पार्टी भी मिलेगी भाई बाद में, तो ध्यान रखना. आई एम एडिंग नेम्स. Party देंगे अंकित सर. हाँ, लाइक ईसेल नहीं के नहीं अलावा भी जो भी सर, बोलना मैं चाहे ये कह बोल रहा सकता है. सर मैं ये कह रहा था कि जैसे उसने बोला कि क्रेडिट कार्ड में पिन नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड में भी पिन लगता है जब नहीं उसे उसमें मतलब ऐसे इन जनरल नहीं लगता है, इन जनरल नहीं लगता है. इन जनरल में वो लिमिट कुछ होती है ना banks से कि वो होते हैं. ऊपर से लगा के, और वो जो कॉन्टैक्टलेस जो अभी न्यू आया उसकी लिमिट होती है, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे. लिमिट तो होती है ना भाई, लिमिट तो होती है. तो पिन की बात कर रहे हैं ना. हम्म. हाँ ठीक है, वो एक हाँ, एडिशनल पॉइंट लिमिट था तो कि लाइक इसकी हाँ लिमिट से हाँ ऊपर जाएंगे तो हाँ पिन तुम्हें एंटर करना पड़ेगा तभी वो पे होगा. हाँ हाँ. हम्म. so let me continue. या कार्तिक. Yeah, so let's check what the basic difference between a debit card and a credit card is. The first thing, let's go with the debit card. So the first point is like you can't take credits from a debit card, which basically means credit card is like operating on your account. You can take only what belongs to you. So if you have money on your account, you can take it. It's like a virtual replace. It's like a replacement to your currency right there. And when you're swiping a debit card, when in a shop or something, you're actually taking out the money from your real account and like paying it, transferring it to the third party account, or like where you're like actually doing it. And you're having a security measures, like that's the first level of security measure, which is a digital pin, which is like 4-digit, or like some bank cards like 6-digit right now these days. And so, and even this is like it's two-factor authentication where you can even do like enable an OTP, which is like mandatory for credits over like debits over 10,000 these days. And most debit card also works on ATM, which basically means you can actually go to an ATM and like withdraw money right there. And you can pay your utility bills using debit card. And also like a debit card is representing your account. So like you can go to a bank and use it for your own currency. So that's like you don't have to pay any interest for like withdrawing money using a debit card. The only thing you need to is like a small maintenance cost, which is like compounded annually. It's not anything else. So moving to credit cards. Credit card is like basically like you're not taking money from your account. It's like a micro loan kind of thing. You're like taking telling the bank like I need some money, some amount of money, like I'm taking it right now for my use and I'll pay it later with a small amount of interest. And like as Dhananjay said, like it's the most
the bank recommends us for getting a credit card because it benefits them. They're getting interest and like things in return. So the credit card ranges from like there are many kind of credit cards: silver, gold, premium, platinum. It depends on many criterion such as the income of the person and like other things like the scores, credit scores, and all. So if you and this it's the major con of a credit card is that once if you accidentally miss to pay the pay back the correct interest or at the time, you can get a huge penalty in return. Also, some of the credit card doesn't allow you to actually go to ATM and get money. You can only use for like shopping in a mall, so like somewhere where the credit card works. And not like debit card, you can't go to a bank and directly apply for a credit card. For getting a credit card, you need to go to a bank. You have some few eligibility and like verification. First thing, start with your income. So like there's a like separate income criteria for each bank, and if you're like above that, along with that, if your credit score, like, which basically tells your past histories of credit and like have you paid that credits, like if that's about like around 750 right now, so if that's the only thing time when you can actually like get a credit card. And the credit card, for example, like if you go to Amazon, you see Flipkart credit card deals, Axis Bank credit card deals. So like that's how it works. Like they give reward points so that they can attract more customers. So Parth, can you go to slide like the slide number 6? Slide number 6. Yeah. So what are the eligibility and documents required for a debit card? For a debit card, any person, it's like representing your own bank account, it's representing your money. So you don't need anybody, like you need a permission, but you don't actually have to do anything else. You just need to go to the bank, just tell them you have an account there, submit valid proofs, and then like 2 to 3 days, like you get your credit card in your hand. Like debit card in your hand, sorry. And like most account these days, like when you start the account, you get a debit card within it, like on the starting days itself. When you open an account, if you're like if not getting a debit card in the starting of the account and you wish to apply for new, the only things you need is the proof of identity, which is like passport, Aadhaar card, driving license, voter's ID, something like that, and the proof of address, which can't be the same as the proof of identity. You need 2 separate documents for that. At the time of a valid PAN card, if you're a major, if you're like below 18, you can have a minor account with the like PAN card of your parents or somebody who's like representing your account. A Form 16, which is also an alternative for PAN card if you need, and 2 latest passport size photographs. So Dhananjay, can you like explain the do's and don'ts of credit card, debit card, please? Like you could continue like do's and don'ts. So these are like the official do's and don'ts of debit cards from the official SBI account, like SBI site. The first thing is privacy. It's your money. You have to take care of it. So like you have to keep your identification PIN and everything safe with yourself. And second of all, like you can't go anywhere and swipe. Beware of suspicious things around happening. If you get if you get a message saying like your credits are this much, we need an OTP. Don't just keep beware of them and Yeah, don't like be aware of the fraudulent messages. And like the main difference is that ki credit card is like udhar ka paisa. Like you don't have much balance in your account, but still you can purchase things within a credit limit you have. And later you have to pay for that, but on which bank charges a lot of interest, like the money in this way. That's why they prefer that you buy credit card only. Like Like there in is this, like The interest 2 can to go up to 4%. 40% per Yeah. annum. Per annum. Like monthly, it might go like range from 2 to 4% rate of Yes. interest. Let me add one thing. There is one more thing which actually goes to the favor of it is when you do any transaction online using cards, actually the money goes from the bank. It doesn't go from your own account. Yes. So what happens is that you have a security against the frauds. So if you actually report the fraud within the 3 days of span to the banking system, wherever, they would actually take the claim and they will actually try to find it out. And the point is that you will not be liable for that. But after that, you have another time period, which is like 7 to 10 days of time,
you would have a little like a, I think around some 10,000. It ranges from 10,000 to 25,000 amount. You you become liable for that amount, that much of amount. So that's one thing I can say. If you're able to identify the fraud pretty quickly, then you'll be pretty much safeguard from your any fraud, happening. Yeah, like so. I think we should move on to next topic. Like, Palash, are you here? Yeah, sure. Yeah, Palash will introduce you to about Rupee. Like, Yeah. Palash, continue. Yeah, so hello everyone. So let's jump to some interesting topics. How Rupee is becoming the new monopoly of Indian system. So let's start from the very basic system. What is Rupee? It's a card network system, card network provider basically. So how actually it works? So let's take an example. Let's suppose you go to a shopping mall and there are two different branches over here. One is a issuing bank, which is actually your bank. Let's suppose it is HDFC. And there is another bank, which is the acquiring bank, which is the merchant bank. Let's suppose it is ICICI. Okay, so what happens when you pay with your credit card to any merchant? Okay, so yeah, when you pay to a merchant, or let's suppose you are doing the online transaction. So when you actually type all the details into a system, into a server, so let's suppose that server is Razorpay. What Razorpay does, it is actually a company जिसका सिर्फ इतना काम होता है कि उसको आपकी डिटेल्स जितनी है वो सारी डिटेल्स लेके और आपके एक्वायरिंग बैंक को देनी है, विच इज एक्चुअली द आईसीआईसीआई बैंक इन अवर केस, विच इज एक्चुअली द मर्चेंट्स बैंक. मर्चेंट्स बैंक क्या करेगा, वो जो कार्ड का आपका कार्ड प्रोवाइडर था, वेदर इट इज वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे, वो उसको डिटेल्स देगा कि आई हैव रिसीव्ड सम इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइक withdrawing some money from this bank account. Let me tell me whether it is possible or not. So what will happen? Let's suppose in our case it is Rupee. So Rupee will take that details and then it will go to the issuing bank, which is in our case is the HDFC bank. Can you just go a little bit slower? I believe people won't be understanding. Sure, sir. I will tell like in a short time also. Okay, so let's suppose we have two different banks. One is the HDFC, other one is the ICICI bank, and you are doing online transaction. So like of course you are doing online transaction, then there must be some server. So let's suppose that in our case is the Razorpay. Razorpay is taking your information from you and then it is sending your information to the acquiring bank. What is acquiring bank? It is the merchant's bank, which is in our case is the ICICI bank. Fine. Then what will happen? Like our card network is Rupee. So the acquiring bank, the merchant bank, will send the details to the Rupee to confirm whether we have the enough balance or not. So Rupee will send the information to our issuing bank, which is in our case is the HDFC bank. Then HDFC bank will tell whether we have the enough amount of money or not. Then like the same path retraces and finally the payment got confirmed. Okay, so I guess that was just the basic details how the debit card works. So now let's jump to the main and the most fundamental and most interesting topic, how Rupee is becoming the new monopoly. If you actually remember, before 2019 and 2010, Visa and MasterCard were the only two big duopoly in the Indian market system. And let me give you a small history. Okay, so back in 2009, there were 500 small and large banks in India. But do you even know Visa and MasterCard used to only tie with only top 50 banks of India? What about the other 450? No one actually cared about them. Then if you see in 2009 to 2012 RBI vision, they clearly mentioned they need a domestic network, card network. Okay, so first thing, why we actually need it? So let's jump to 2014, 8th May 2014, when the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana came into power. So the first very basic question, why the Indian government actually implemented this type of Yojana? Okay, so let me tell you, the Indian system, the Indian society are divided into subsections. So Visa and MasterCard were only focusing on the top sector, Sector 1 and Sector 2. They were not focusing about the farmers, about the rural areas. They were just focusing about the upper middle class families. And all the cards and all the schemes were just for them only. Okay, so back in 2014, the like 64% of Indian population were actually benefited from the bank accounts. Do you even know that fact? Like in 2014, let's just suppose you have 100 people. Out of them, 64 people don't even have a bank account. Only 36 does. So that was a major problem कि आप एक कंट्री ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे आप अपने 64% पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं दे पा रहे. So that was actually need क्यों गवर्नमेंट जन धन योजना लेके आया to help all the population connect with the banking solutions. Now the major problem कि क्यों आया था, क्योंकि इसके पहले जितने भी बैंक अकाउंट थे उनमें एक मिनिमम लिमिट होती थी. लेट्स सपोज 5000 6000. तो एक बहुत स्मॉल लिमिट जो है 3000 की लिमिट होती है. वो it used to vary from bank to bank. Like if you are going to a private sector, it will of course be 6 to 10 15,000.
If you are Yes. going to SBI, it will be 2,000. Okay. हम्म, तो पहले क्या होता था, एक लिमिट होती थी. तो एक बहुत छोटा वेंडर है, उसका लाइक मंथली इनकम ही 5,000 है. लाइक हाउ इज गोन मेंटेन दैट मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट इफ ही इज ओनली अर्निंग 5,000 रुपीज इन अ मंथ. तो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम. क्यों काफी सारे बैंक अकाउंट्स नहीं खुले थे उस टाइम पे. 2014 में गवर्नमेंट को पता चला कि वीजा मास्टर कार्ड रहेंगे, दे आर ओनली गोना फोकस ऑन द टॉप 2 to 3 ईयर्स. तो बेसिक लेयर जो है, फार्मर्स जो है, वेंडर्स जो है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनको कौन हेल्प करेगा. तो गवर्नमेंट को स्टेप अप करना था. एंड ऑफ कोर्स सिंस मास्टर कार्ड एंड वीजा आर द फॉरेन कंपनीज, तो वी कांट रिलाई ऑन देम एवरी टाइम. लाइक कभी वॉर हुआ या कुछ हुआ, दे आर जस्ट गोना बैक ऑफ. तो गवर्नमेंट ने जब जनधन योजना निकाली थी, उसी टाइम पे सिंस आरबीआई का विजन था 2009 से कि एक डोमेस्टिक नेटवर्क होना चाहिए, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को आरबीआई ने आइडिया दिया था, व्हाई नॉट वी क्रिएट अवर ओन कार्ड नेटवर्क. उस टाइम पे एनपीसीआई, विच इज एक्चुअली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको एक ऐसा कार्ड नेटवर्क खड़ा करना है जो कि आपको गवर्नमेंट बैक होगा, जो कि इन लोगों को हेल्प करे. अब इस पे जनधन योजना का रूल क्या आया. जनधन योजना के अंदर 308.5 मिलियन बैंक अकाउंट्स खोले गए थे टिल नाउ. लाइक 310 मिलियन बैंक अकाउंट. और पलाश, लाइक अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानता है ना, तो वो बताओ अपने व्यूज. लाइक तुमने अगर इसके बारे में पढ़ा हो, लाइक Parth, I guess let me complete first and then I will ask the questions. Maybe I will answer. क्वेश्चंस नहीं, अगर किसी को इससे रिलेटेड आता हो तो वो इस पर आई थिंक Yeah, ये like- काफी लोगों को पता होगा. Like if anyone of you know about Jandan Yojana or the RuPay card, लाइक कोई कुछ बोलना चाहता है या किसी को एक्सपीरियंस है तो 1 मिनट का बोल भी सकता है. yeah, you can add on. Yeah, you can just unmute Yeah, and like talk. it's kind of a discussion only. Like you can share your views on that. Yeah, sure. हेलो सर. अरे पार्टी किसको चाहिए? Ankit sir is like taking names down. Yeah, sure. Shivam had asked one question in chat. Someone can answer. Okay. Let me check it. Yeah. Okay. So like अभी नया debit card बनवाया हूँ, but I'm not speak? much more aware of the fraud. Can you all give some tips for safe use? Yeah, sure. Shivam, we will consider it at the during the last of the event. It is possible to merge debit card and credit card in same card. Like you will pay by debit card until you have money in your bank account, and as soon as the balance. Arey Dhananjay or Rathod, if anyone of you can clear this doubt right now, only clear it right now. I don't think it will take more than a minute. हाँ, yes. So like you asked first, like कार्ड बनाया है तो as such like कोई मतलब सिक्योरिटी टिप्स तो नहीं है. like सिक्योर करना आपका जो भी पिन होगा उसको सेफली बस लाइक फ्रॉडलेंट मैसेजेस पे ध्यान रखना और पिन अपना शेयर मत करना. लाइक कार्ड के कवर पे लिख लेते हैं पिन. देखो कभी Okay, किसी ने जैसे मैसेज second किया question है- कि तुम्हें 5 लाख 1 करोड़ या ऐसे पूरा दुनिया तुम्हें हाथ पकड़ा रहे हैं, तो वैसे लोग ना उन्हें इग्नोर करो. ठीक है, तुम ऐसे आंख बंद करके लेट मी शेयर एन एक्सपीरियंस. Actually my father got an message. Okay, yeah, it was just before the admission time. It was pretty fucked up that time, but I'm sorry. So क्या हुआ था? So my father actually got message from some people who were actually acting like, you know, they were acting as if they're from Jio. Okay, yeah, they have a Jio SIM. ठीक है. So it was a postpaid. So देखो आया था and they asked them कि देखो आपका 10 रुपये आपने भरा नहीं, ठीक है, and your SIM would like totally get deactivated and everything. So dad was like, he just woke up at that time, so he didn't use much of his brain. He was like, अरे कुछ तो problem है. So then okay fine. So since it looked authentic, so dad just went directly उसका link में गया directly, like, and he transferred 10 rupees. Okay, so let me listen. 10 rupees, and he kept all of his basically bank details transaction किया. So what happened after that? फिर उसके बाद फटाफट 15,000 कट गए. The moment, ठीक है, the moment when he transferred, फटाफट 15,000 कट गए, फिर एक और 15,000 कट गए, and the next moment that totally stopped. फिर जो पहली बात बैंक को एकदम अकाउंट को बंद करा दिया. The point is that देखो पॉइंट क्या है ना, the fraud calls which you might get, the fraud text which you might get, उनसे तुम्हें पहली बात तो तुम्हें दूर रहना है. ठीक है, एंड बाय द वे ना, ऐसे तुम्हें कभी भी ऐसे तुम्हें पेमेंट करने के लिए कोई भी बैंक तुम्हें कभी नहीं बोलेगा कि देखो यार ऐसे पेमेंट करना है करके. I know it was from an Airtel, I mean, like, it was from a network user, but still it applies to every company. Most of them, they always say, देखो बहुत बार उन्होंने ऐसे advertisements में भी बताया कि do not share your OTP, passwords or any personal bank details to anywhere, because they never ask for it nowhere. ठीक है, समझ रहे हो? Let's keep it short into 3 points. Okay, firstly,
never share your PIN, never share your CVV, and never share your card with anyone. These are the only 3 points you have to keep in mind. Even if like अगर कोई बैंक वाला भी कॉल करता है कि सर आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस आए हैं हमें आपका पास पिन चाहिए, never share with them. Just tell them, okay, I will come tomorrow to your bank, and then we will have a discussion on it. That's the only thing you need to keep in mind while using credit card or debit card. Okay, so I guess that was all. And okay, so there was another question, very interesting question actually in the chat. Amish actually asked it. Okay, so ऐसा possible है क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों सेम कार्ड में मर्ज हो? So I guess recently IndusInd Bank ने ऐसा कुछ स्कीम निकाला है, तो उनके कार्ड में that is a डेबिट कार्ड, बट उनके कार्ड में ऐसा कुछ फीचर है कि you can enable credit card mode also with your mobile app. So yeah, technologies like these are coming, but yeah, of course by the private sector only. So hope so in the next 2 to 3 years we will have some actually a merged card which will work in both ways. Okay, so let's continue. Okay, so जनधन योजना आई, उसके बाद क्या हुआ? जब एनपीसीआई को ये दे दिया गया कि आपको एक कार्ड नेटवर्क खड़ा करना है, तो एनपीसीआई जो आरबीआई ने नाम सजेस्ट किया था वो क्या था? इंडियन पे. बट जब एनपीसीआई को पूरे रिपोर्ट्स मिले, उन्होंने पूरी स्टडीज की, उन्होंने एक्चुअली प्लान आउट किया कि हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, तब उन्होंने एक नया नाम सोचा विच वाज एक्चुअली रुपे पे. So how like it was actually rupee and the payment, then it merged and it became the rupee. Okay, so अगर सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन सोचें, लाइक सबसे बेसिक थिंग कि रुपए क्यों आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमआरडी, जो कि कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर चार्ज करता है बैंक से या फिर मर्चेंट से कह लो. So like there are two different situations. One is McDonald's, which is earning 40 to 50% gross margin from each product, and there's another vendor which is only earning 10 to 20% from a product. So just think about these two situations कि अगर कोई कार्ड नेटवर्क 3% उन लोगों से ले रहा है, तो मैकडोनल्ड्स को उतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि they are already earning 50%. But what about those small vendors who are earning just 10% from their product? For them, that 3% is like for the whole grocery of the month. तो ये सोचते हुए जब आरबीआई ने सोचा, तब उनको लगा कि कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर की जरूरत है, तब रुपए को लाया गया. तब रुपए ने क्या किया? रुपए का सबसे मेन अगर आप सोचोगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, वो इतने बड़े कैसे हो गए, तो रुपए का बहुत सिंपल सा था. हमें फर्क नहीं पड़ता आप छोटा ट्रांजेक्शन कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, हमें सिर्फ एमआरडी 90 पैसे चाहिए, विच इज 1.5 रुपए. बस इतना दिया उन्होंने, और जो वीजा मास्टर का जो 50% ले रहे थे अप टू, वो पूरे उनकी ड्यूपोली कम हो गई. ओके, सो रुपए क्यों लाया गया? सबसे बेसिक थिंग, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इंडियन सिस्टम की, फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, वेंडर्स हो गए, उनको ज्वाइन करना था बैंकिंग सिस्टम से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना था इंडिया के अंदर. लाइक ऐसा होता था कि लाइक फार्मर्स के अगर उनकी लाइक कल्टीवेशन अच्छा नहीं हुआ, उनको नेक्स्ट सीजन भी अच्छा नहीं जाता था. लाइक दे डिडंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि वो दोबारा नए सीड्स लें, दोबारा पूरा नया सिस्टम खड़ा करें. तो गवर्नमेंट को ये नीड लगी कि देयर शुड बी अ बैंकिंग सिस्टम जो कि एक कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर होना चाहिए जो उनकी हेल्प करे. सो अगर आगे देखेंगे, so RuPay has actually started doing this thing. So RuPay ने अभी 4 कार्ड निकाले थे recently, which was actually PMJDY, which is actually was the debit card for the rural areas. Then the Mudra card. Mudra card was actually कि अगर आप कोई small businessman हो और आपका like loss हो गया बहुत ज्यादा, and you don't have enough capital या फिर assets कि उनके against में आप लोन ले सकते हो या कुछ, तो मुद्रा कार्ड आपको एक छोटा सा वर्किंग कैपिटल देता है to re-establish your business. Okay, then there was Pangain card, जो कि एक्चुअली फार्मर्स को दिया जाता था कि लाइक उनका कल्टीवेशन अच्छा नहीं हुआ है, सो दे कैन लाइक बोरो सम मनी फ्रॉम दिस कार्ड आल्सो, एंड देन दे कैन पे बैक लेटर व्हेनेवर दे गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. एंड देयर वाज दिस किसान क्रेडिट कार्ड आल्सो. या सो दीज वर द थिंग्स. सो हुआ क्या? रुपए 2014 में आया, ऑफ कोर्स इट केम इन 2012, बट जो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट 2014 में करना चालू किया. जनधन योजना में गवर्नमेंट प्लेड अ वेरी की रोल. उन्होंने बोला आप जनधन योजना कर रहे हो, आप उससे अकाउंट खुलवाओ, लेकिन उससे इशू हुए हर एक डेबिट कार्ड रुपए का होगा. दैट वाज द मेन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट एक्चुअली यूज, जिसने वीजा और मास्टर कार्ड को बैक ऑफ कर दिया, क्योंकि रुपए ऐसा कोई बैंक नहीं लेता. बट एमआरडी वाज वन थिंग ऑफ कोर्स, बट रुपए फेमस क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि जनधन योजना का हर एक सिंगल कार्ड सिर्फ रुपए से ही इशू हो सकता था. उससे क्या हुआ? 60% ऑफ इशूड कार्ड आफ्टर 2014 वर एक्चुअली ऑफ रुपए ओनली. ओके, सो ये तो बात थी कि ठीक है इंडिया में रुपए इतना बड़ा हो गया, गवर्नमेंट क्यों लेके आई? क्योंकि वो जो फार्मर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनको कनेक्ट करना था फाइनेंशियल सपोर्ट से. फिर अब लाइक रुपए को सिर्फ इंडिया में तो नहीं रखना था ऑफकोर्स. तो रिसेंटली क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा किया विच इज एक्चुअली NIPL. तो उनका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना है, रुपए को फॉरेन कंट्रीज में लेके जाना है. कि अगर लाइक आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हो, लाइक अमेरिका क्यों ग्लोबल लीडर है, क्यों वो लाइक दूसरों को लाइक इतने सैंक्शंस लगा पाता है?
क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी कलेक्शंस होते हैं या फिर ट्रांजेक्शन होते हैं वर्ल्ड में वो डॉलर्स में होते हैं, और डॉलर्स यूएस कंट्रोल करता है, इसलिए वो सैंक्शंस लगा पाता है, इसलिए कंट्रीज के अगेंस्ट में बोल नहीं पाते ज्यादा कुछ। वही सेम सिचुएशन इंडिया भी क्रिएट करना चाह रहा है, इंडिया भी ग्लोबल लीडर बनना चाह रहा है। तो वो कैसे होगा? हम फाइनेंशियली ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो एंड सिंस वी हैव यूपीआई एंड रुपए, so these are the two major things which are going to actually help us in becoming the new global master. So अगर रिसेंटली देखेंगे, सो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया रुपए को एक्सपेंड करना। लाइक रिसेंटली सिंगापुर, भूटान, यूएई, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने टाइप कर लिया रुपए के साथ एंड यूपीआई के साथ कि लाइक उनको अपने बैंकिंग सॉल्यूशंस में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दीज वर द ऑल द मेजर थिंग्स कि क्यों रुपए को लाया गया, क्यों 2040 में जनधन योजना लाई गई, क्योंकि लोगों ऑफकोर्स लाइक 64% ऑफ द आपकी पॉपुलेशन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो लाइक हाउ आर यू गोना रन योर लाइक जीडीपी एंड योर ऑल द इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज द मेजर रीजन क्यों जनधन योजना लाई गई, क्यों रुपए लाया गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिसेंटली पढ़ोगे 1300 करोड़ गवर्नमेंट ने इशू किए थे रुपए को, वो टैक्स पेयर्स का मनी था, बट वो रुपए को क्यों दिया गया था? उसको इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो जो एमआरडी थी 90 पैसे की, वो अभी फ्री कर दी गई है रुपए के थ्रू, इस मनी के थ्रू, क्योंकि रुपए को और ज्यादा एक्सपेंड करना है इस कंडीशन में। वीजा और मास्टर कार्ड को पीछे रख के रुपए को एक्सपेंड करना है, एंड सिंस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको और सब्सिडी दे रही है अभी। So these were all the major points, how RuPay is like on the path to become the monopoly in the Indian society, and कैसे उसका name change हुआ, and most importantly अब जो globalization कर रहा है RuPay, like I can assure you in the next 5 to 6 years RuPay is going to become the new Visa, or like the master of Visa actually. Yeah, so Yeah, like that's from my side. Thanks a lot. If you have any doubt or any queries, yeah, like if anyone have any doubt or they want to add on something to this RuPay, they are free to add on. Like कोई कुछ और बताए रुपए के बारे में, लाइक उनके पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट हो, लाइक जो पलाश ने you मेंशन can नहीं किया। talk about like anything you want, like it's okay, like nobody's gonna judge you, like it's about something about this topic or something like outside of this topic you can talk, even if it's like your personal experience, like कुछ like ऐसे मैसेज आके तेरे भाई से गया ऐसे Okay. So one question Avnish actually asked, what if I have to pay at a website which I don't think that much trustable, like charity fund? Okay, so Savneesh, what happens actually कि जो वेबसाइट्स होते हैं वो तुम्हारा पेमेंट नहीं लेते हैं, वो एक नेटवर्क होता है, लाइक लेट्स सपोज रेजर पे हो गया या पेटीएम हो गया, वो एक पोर्टल्स होते हैं जो कि वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, लेट्स नेटवर्क पाथवे एक्चुअली, तो वो तुम्हारी डिटेल्स देते हैं। तो जब भी किसी वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हो तो ऑलवेज सी कि वो कितना ट्रस्टेबल है। लाइक जो बड़े नाम होते हैं, रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, एसबीआई पोर्टल हो गया, ये सब बड़े नाम, ये सारी कंपनीज बहुत ट्रस्टेड कंपनीज है। सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू देम। और कई वेबसाइट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी पोर्टल नहीं होता, वो डायरेक्टली तुम अपने बैंक में ही मनी ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। तो उन केसेस में लाइक ऑफकोर्स फिर तुम्हें देखना पड़ेगा लाइक वो वेबसाइट कितनी ट्रस्टेबल है। बट अगर कोई पोर्टल उससे लिंक वेबसाइट है तो ऑफकोर्स यू कैन गो अहेड विदाउट एनी वरी। लाइक मैं IIITL की वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता कि मेरा पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो मैंने 1.5 लाख डाल दिए एक सेमेस्टर के और फिर नहीं पहुंचा, फिर मैं क्या करूंगा? ऑफकोर्स अगर तुम्हारा पैसा नहीं पहुंचता है तो वो जो नेटवर्क पार्टनर होता है लाइक रेजर पे या पेटीएम, उन्हीं के पास ही होता है। लाइक सुनो लाइक पेटीएम या तुम उससे करते हो, देखो इसी वजह से जो तुम उस पर देखोगे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखाता है तुम्हें सबसे पहला ऑप्शन, लाइक क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है ना, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज के लिए। बट तुम्हें ये देखोगे अगर तुम्हारा पैसा गया है, तुम्हारे बैंक से पैसे कटे होंगे, तो तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, है ना, तो वो एक प्रूफ हो गया कि तुमने उससे पे किया, लाइक वो तुम्हारी साइड से गया है पैसा। अब वो बीच में कहीं और चला जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, या फिर जिस पाथवे से तुम पे कर रहे हो ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्चुअली मैं ये कैसे मेक श्योर करूं कि जो मैंने डिटेल्स इनपुट की हैं वो अथॉरिटी उस डिटेल को फिर यूज नहीं करेगी? अरे लाइक सुन मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखिए एनपीसीआई है ना, ये देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक था। लाइक ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी तू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगा ना, लाइक ऑनलाइन जो भी तू पेमेंट करेगा, किसी को भी कर रहा है, लाइक तू पेटीएम के थ्रू कर रहा है या भारत पे, फोन पे, मतलब किसी फोन पे के थ्रू कर रहा है या किसी और के भी थ्रू कर रहा है ना, या भीम पे के थ्रू भी कर रहा है, तो ये पूरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको देखती है। लाइक ये ही एश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी तेरा बैंक या कोई भी और मतलब कोई भी और प्राइवेट कंपनी या मतलब कोई भी और वो तेरा डेटा लीक नहीं कर सकता, वो तेरे बैंक के बैलेंस भी नहीं देख सकते। पता है असली बात तो ये होती है, लाइक वो नहीं देख सकते अपनी साइड से, मतलब वो तेरी साइड से सिक्योर रहता है। लाइक
जैसे तुम लोग सोचते हो ना व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टाइप वैसा। हाँ लाइक वो कह सकते हैं। अरे लाइक जैसे दिलीप ने बोला व्हाट्सएप ना पे कि तुम्हारी उसने एक इन्फॉर्मेशन बार है जो वो तुम्हारी 10 चोरी रुपए नहीं डाल करती। दिए, उसके बाद हो फिर गया, से 1000 फ्रॉड हो निकला, गया, फिर इसे 1000 निकला। कर सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो। जो मेरा केस था ना उसमें क्या हुआ था कि दे फर्स्ट एक्चुअली मेड माय फादर टू डू अ ट्रांजैक्शन सो दैट दे कैन मेक श्योर, मतलब पहली बात तो जैसे ट्रांजैक्शन किया ना उन्हें पता चल गया कि इस बैंक से ट्रांसफर हो रहा है, सो दे गॉट द डिटेल्स फ्रॉम दैट। लाइक वो उनका जो साइट ही ऐसा बना है कि जो ट्रांसफर होगा जिसमें जो डिटेल्स इनपुट कर रहे हो वो उसे नोट कर लेगा, बेसिकली वो उससे ऑटोमेटिक रिकर्शंस करा देगा ट्रांसफर करा, ठीक है। सो इट डिड 15,000 करके। या लाइक अपन का एक टॉपिक और रह गया लाइक मास्टर कार्ड का, लाइक तुषार। सेम थिंग मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे हाँ मेक हाँ श्योर करूँ कि वो वेबसाइट मेरा पैसा दोबारा नहीं लेगी, मींस खुद से मेरी डिटेल्स वो कैप्चर नहीं कर रही है। ओके, सो अवनीश, Most of वन the थिंग कि sites. क्या होता है कि जब भी तुम पेमेंट करते हो ना कहीं पे, तो वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट होता है। उसका एक की निकलता है, एक इंक्रिप्शन की निकलता है तुम्हारी जब तुम पेमेंट कर रहे होते हो। तो कोई भी कंपनी जिसके पास तुम्हारी डिटेल्स है वो दोबारा तुमसे पैसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो भी पेमेंट गेटवे होता है या फिर एनपीसीआई है, वो मॉनिटर करती है कि तुम पेमेंट कर रहे हो या फिर एक ही वेबसाइट से अगर मल्टीपल टाइम्स पेमेंट हो रहा है, तो वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको तुम वहाँ पे हाई डिटेल्स देते हो, तो इनकम डिपार्टमेंट, एनपीसीआई, पेमेंट गेटवे, ये सारे लिंक होते हैं। तुम्हारी हर एक डिटेल, हर एक ट्रांजेक्शन मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुमने डिटेल्स डाल दी तो सेम वेबसाइट बार बार तुमसे पैसे निकाल सकती है। जब तक तुम सामने से ओटीपी नहीं दोगे तब तक कोई भी तुम्हें पैसे नहीं निकाल सकता। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि फ्रॉड हो गया हम लोगों के साथ, हो गया ओके, मतलब 5,000 That का। is really hard. तो That is really कहाँ hard. कहाँ ले जाए उसको? ओके, सो क्या होता है संस्कृत, really साइबर क्राइम वेबसाइट्स है ना। ओके, सो देयर इज वन न्यू स्कीम, लाइक आरबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाले थे। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से कोई फ्रॉड हुआ है जिसको तुम्हें नहीं पता, तुमने अप्रूव नहीं किया, तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो विद इन 3 days तुम्हें आरबीआई को रिपोर्ट करना है। आपको अगर आरबीआई को नहीं कर सकते, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आरबीआई की खुद की वेबसाइट होती है रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रिपोर्ट करो अपना बैंक अकाउंट और वो ट्रांजेक्शन जो हुआ उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दो। So within 3 days, if you actually register within 3 days, RBI is gonna make sure कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाए। All the money will be जो भी मनी होगा वो बैंक की लाइबिलिटी होगी, वो उसका लॉस होगा। एंड आपको बैंक पूरा मॉनिटर कर सकता है ट्रांजेक्शन किस बैंक में हुआ है, क्या हुआ है, तो उसका एक कमेटी अगर बैठ सकती है। बट अगर विद इन 3 days यू एक्चुअली रजिस्टर योर कंप्लेन, so you will get your money back। और लाइक मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लाइक तुमने जनरल इफ यू हैव हर्ड लाइक कि ऐसा, इफ यू थिंक कि लाइक बैंक से पैसा कट गया बट मेरा पैसा वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, लाइक तो तुमने डीबीएमएस में पढ़ा होगा एटॉमिक ट्रांजेक्शंस होते हैं। लाइक अगर वो कटा है तो वो पहुंचेगा, लाइक अगर वो वहां पहुंच नहीं पाया तो वो पूरा रिफंड हो जाएगा। लाइक मतलब वो तुम्हें एरर शो कर देगा। पूरा ट्रांजेक्शन होता है वो तभी तुम्हें दिखाता है कि सक्सेसफुल हो गया। लाइक एटॉमिक ट्रांजेक्शंस पढ़े होंगे तुमने, लाइक डीबीएमएस में पढ़ाया था सर ने। भाई ये कन्वेक्स ना बोल, हाँ, अब तुम लोगों ने पढ़ा है। बट जैसे बैंक भी हम लोग गए कंप्लेन करने के लिए, उन्होंने कहा कि डिटेल सारी आपने भरी थी और आपका पैसा चला गया, जबकि हम लोगों ने कहीं कुछ भरा ही नहीं। और उन्होंने डायरेक्ट हाथ खड़े कर लिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। Actually, it happens in reality में ऐसा रहता है। The ऐसा नहीं that होता, we ऐसा नहीं होता। ऐसा लाइक थोड़ा ब्रीफ और दो थोड़ा सा और। हो जाता है कभी कभार से। The point let me tell you is like my personal experience. My father actually called a bank manager. He was his friend. Okay, so he called him. He's like, देखो यार, it's pretty hard to actually trace out the like such a small amount. To be honest, that's why they actually took a small amount. वरना ऐसे 1-2 लाख उठा लेते ना। The point that they took small amount because it's really hard to track such a small amount at like a big ocean of transaction. वो ऐसे थोड़ा दिक्कत होता है। And you know the point is that they don't really give much of attention to that small amounts. If it were like a really like big amount, then it would have been made a big issue. उन्होंने बोल दिया कि हो गया जाने दीजिए। संस्कृति डिपेंड्स, तो तुमने किस टाइम पे कंप्लेन की। लाइक अगर रिसेंटली 1 साल का है तो इसी साल आई है, तो 2021 में गाइडलाइंस आई थी। The second reason is like most of us are illiterate, like I say about these things. Like we don't know the exact rules, and Yeah, like actually- private Yeah, banks actually try to exploit us on these. So like I pretty much even agree with अगर that. तुम बैंक्स में जाते हो ना, लाइक दैट्स द मिस। अगर तुम बैंक्स में जाते हो, उनको लगता है कि उन्होंने कमेटी बैठाई और उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेटर करने का ट्राई किया, तो उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे तो संस्कृति that's why they most of the time वो नहीं मना कर देते हैं। बट इन दीज केसेस तुम्हें सिर्फ आरबीआई को कंप्लेन लिखनी है, एंड आरबीआई इज गोना मेक श्योर कि सारे बैंक जो होते हैं वो सारे आरबीआई से कनेक्टेड होते हैं, तो सारे Yeah, बैंक like वो तुमने- करते हैं जो आरबीआई उनको बोलता है। या लाइक तुमने ऐड भी देखा होगा, लाइक केएल राहुल वगैरह के आते हैं, उमेश यादव के, लाइक आरबीआई वाला, ठीक है। और लाइक वो स्टेट बैंक थी क्या जिसने मना करा था, है ना? लिबरलाइजेशन वही हो रहा है, लाइक 2:30 बजे प्राइवेट कर रहे हैं। 2:30 बजे के बाद आना भी लंच टाइम चल रहा है।
तो और 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, कंप्लेन 3:30 से करने के एक्सेप्ट बाद नहीं करेंगे। होता क्या है? तो ठीक है, हो हाँ गया। हाँ अमीश, या मैं ये कह रहा था कंप्लेन करने के बाद होता क्या है? लाइक मुझे तो मेरा पैसा मिल जाएगा, बट क्या उनका अकाउंट फ्रीज किया जाता है या फिर मतलब ऑफ कोर्स कैसे क्या है? लाइक ऑफ कोर्स लाइक अगर पता चला है तो ऑफ कोर्स जो जो इस भी बंदे के नाम पे वो अकाउंट रजिस्टर है उससे अगर बात की जाती है, उनको लाइक कांटेक्ट करने का ट्राई किया जाता है हर चीज। लाइक ऑफ कोर्स लाइक तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री भी होती है, एक तुम्हारी बैंक हिस्ट्री भी बन रही होती है हर ट्रांजेक्शन की। अगर पूरा क्लीन हिस्ट्री है तुम्हारा कि लाइक आज एक भी फ्रॉड नहीं है, पूरा सारे ट्रांजेक्शन क्लीन है, तो ऑफ कोर्स फिर उन केस में वो ज्यादा हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे। दे विल जस्ट इंक्वायर यू वंस एंड दे सी कि अगर मे बी गेटवे का कुछ फॉल्ट है या फिर उनका बैंकिंग फॉल्ट था, तो पहले वो उसको इंक्वायर करते हैं, उसके बाद जिसके बैंक में गया उससे बात करते हैं। बट ऐसा है कि तुम्हारी लाइक बहुत रिसेंटली बैंक अकाउंट खोला है या तुम्हारी हिस्ट्री ही सही नहीं है, तो इन दैट केस आपको रिसीव द बैंक अकाउंट आल्सो। सेम प्रोसीजर इसके लिए भी होता है अगर मैंने गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए तो? अरे लाइक इसका पता है नहीं, बहुत सही रूल है। इसका नहीं होता कोई, इसका नहीं होता ये। अगर तुमने खुद से अरे पेमेंट किया देन नो वन कैन डू एनीथिंग। क्या है उसको कुछ नहीं अरे करना। लाइक इसमें भी कुछ होता है लाइक कि अरे नहीं नहीं होता है लाइक आई गेस स्टेट बैंक ही करती है। लाइक अगर तुमने किसी के अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए ना, तो आई गेस स्टेट बैंक उसे वापस ला सकती है। हाँ वापस ये लाते इसका हैं। हाँ, और ऐसे उस बंदे ट्रांजैक्शन की रिवर्स नहीं कर सकते, एक्चुअली नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, मगर कुछ ऐसा होता है कि लाइक स्टेट बैंक वगैरह वो पैसे वापस ला सकती है, और भले ही वो बंदा चाहे या ना चाहे तुम्हारा पैसा वापस आ जाता है। और वो like आता इसमें है, एक लेकिन चीज़ वो छोटे, वो एक्चुअली छोटे हैं, वो ध्यान नहीं देते। अगर बड़ा अमाउंट होता है वो तो ही ट्राई करते हैं वो हाँ लाइक ऑफ कोर्स वो दैट्स वाली द चीज है ना। अब लाइक अब सुनो सुनो लाइक अब मास्टर कार्ड पे फॉरवर्ड करते हैं, लाइक मूव ऑन करते हैं है ना? हाँ या पूछा। या लेट मी स्टार्ट ऑन मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड मतलब अभी लाइक 1966 में स्टार्ट हुआ था, और मास्टर कार्ड एक यूएस बेस्ड कंपनी का लाइक गेटवे कार्ड है। इसमें मास्टर कार्ड में क्या होता है, मतलब लाइक मोस्टली ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होता है मास्टर कार्ड से। लाइक लाइक वीजा और मास्टर कार्ड दो चीजें हैं। लाइक वीजा से होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मास्टर कार्ड होते हैं लाइक मोस्टली ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। अब क्योंकि यूएस बेस है, तो अभी रिसेंटली हम लोग से पता होगा कि अभी जैसे एसबीआई वगैरह होती है, टाई अप करती है मास्टर कार्ड से, वीजा से। लाइक मास्टर कार्ड और जो वीजा है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, लेकिन जो रुपए कार्ड है वो सिर्फ इंडिया कार्ड है, वो इंडिया में एक्सेप्टेड है। लाइक अभी भूटान में भी शायद परमिशन मिल गई है रुपए कार्ड को, लेकिन मास्टर कार्ड एंड वीजा ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एंड मास्टर कार्ड करीबन 22% यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड वीजा को करीबन 50% यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें ऐसा होता है लाइक अभी 2021 में जुलाई में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी मास्टर कार्ड को मतलब नई कार्ड इशू नहीं कर सकते मास्टर कार्ड, उसको मतलब नई कार्ड इशू करने पे रोक लगा दी, उसकी बैन लगा दी मास्टर कार्ड पे। तो पहले क्या था, अभी अब बैंक में जाओ तो आपका सिर्फ बैंक में अकाउंट खुलवाओ, तो आप लोगों का ऑप्शन था आपको मास्टर कार्ड चाहिए, वीजा चाहिए, रुपए चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट बैंक क्या कर रही है आजकल, रुपए कार्ड इशू कर रही है सारे लोगों को, क्योंकि रुपए कार्ड इंडिया का है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी प्रमोट होगी। एंड रुपए कार्ड का जो इशुएंस है, यानी जो इशू करने का चार्ज है, वो भी काफी मिनिमल है, यानी काफी कम चार्ज है। लेकिन मास्टर कार्ड और बीए कुछ चार्ज लेते हैं अपने इशुएंस का, अलाउंस का। लेकिन मास्टर कार्ड इतना चार्ज नहीं लेता, कुछ सॉरी लाइक रुपए कार्ड चार्ज नहीं लेता। तो लाइक एसबीआई पहले मास्टर कार्ड इशू कर रहा था बीच में लाइक 2 to 3 years बैक, क्योंकि उससे मास्टर कार्ड से लाइक फायदा हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया आरबीआई ने, तो अभी लाइक एसबीआई मास्टर कार्ड इशू नहीं कर सकता। एंड अभी क्योंकि लाइक तो ये ऑफलाइन ट्रांजेक्शन प्रमोट करता है, लाइक काफी गेट पे ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा, मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। लाइक मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, रुपया एक्सेप्टेड है, वीजा एक्सेप्टेड है। लाइक वीजा तो ये टोटली ऑनलाइन के लिए ही है, मतलब वीजा तो हर जगह एक्सेप्टेड है ही है। Yeah, Tushar, can you explain once again the meaning of MasterCard, like in simple words only? मास्टर कार्ड लाइक एक कार्ड है, एक्चुअल प्लास्टिक है का। क्या ये? एक्चुअली प्लास्टिक कार्ड ही है, से ये सब कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब मास्टर कार्ड से आप किसी भी एटीएम में किसी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लाइक एक तो ये डेबिट कार्ड है, मतलब डेबिट कार्ड की तरह एक्ट करता है ना, लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह करता है। एक्चुअली सुनो, डेबिट कार्ड में और मास्टर कार्ड में ये डिफरेंस है मेनली। डेबिट कार्ड अगर आपका एसबीआई बैंक का है तो आप एसबीआई के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं मनी, एटीएम मशीन से। लेकिन आपका मास्टर कार्ड है तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, और शायद इसकी डेबिट कार्ड से भी हम किसी भी हाँ, डेबिट कार्ड से किसी भी से हो जाता है, यस। हाँ और लेकिन दूसरी अरे बात आती है यहाँ जैसे पे, अगर दूसरे हम लोग डेबिट कार्ड से किसी दूसरे कंपनी के एटीएम में जाएंगे तो उसमें सर्विस टैक्स लगता है एक पॉइंट के हाँ बाद। भाई, हाँ मास्टर भाई, कार्ड से उसमें भी टैक्स लगता और है। हो तो जाता है ना, मास्टर कार्ड हो से तो जाता ही नहीं है। हो जाता है, लेकिन वो सर्विस टैक्स लिमिटेड चार्ज ट्रांजैक्शन है, बहुत है। लाइक वो भी नॉट करना। इसमें लाइक लिमिटेड मास्टर कार्ड चार्ज। में चार्ज नहीं लगता। अरे नहीं, ऐसे नहीं, लाइक if I'm getting a bank account of one, like एक बैंक का एक अकाउंट है, like I'm taking from that bank, उसका लिमिट हाई होता है। बट if I
go to other bank ATM ऐसे लेना ट्राई किया तो लाइक उसका लाइक टेकिंग लाइक क्रेडिट अमाउंट लो होगा, लाइक लिमिट होगा ना, लाइक वन ट्रांजैक्शन में दैट विल बी। या लाइक आप लोग देखो कि अपन का ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, लाइक यू कैन आल्सो स्पीक इन बिटवीन, लाइक इफ यू नो व्हाट इज मास्टर कार्ड यू कैन इंटरफेयर इन बिटवीन, लाइक ये कुछ सेशन नहीं है कि हम बता रहे हैं तुम सुन रहे हो, लाइक तुम्हें पता है तुम बोलो यार। आप कोई बोल सकते हैं। गाइस हमें भी सब कुछ नहीं पता है, इवन वी डिड अ रिसर्च में भी हाँ, लगा हाँ, कपड़ा, दैट्स इट। हम लोग भी जितना हमने रिसर्च कर रहे हैं, जितना भी पढ़ के हैं, हम बस बता रहे हैं। देयर कुड बी समथिंग व्हिच वी माइट हैव मिस्ड, सो वी लाइक एवरीवन इज टोटली वेलकम हियर टू जस्ट शेयर देयर व्यूज व्हाटएवर दे थिंक। if we said anything wrong, we are absolutely open for any corrections, please. Like we are not experienced one, we are like Like is there अथर्व आ रहे हैं in the meeting? इसी बात के हैं भाई हम सब। हाँ भाई भाई अथर्व है, अथर्व आ रहे हैं नहीं है, ठीक है। हाँ तो शायद लाइक कंक्लूड कर दे शायद। हाँ कंक्लूड वही है। अभी जैसे मास्टर कार्ड से वो लाइक अभी रुपए ऐसे अभी रूस ने और वही वहाँ पे हुआ था, रूस ने मतलब अमेरिका ने क्या किया, रूस में उसके जो गूगल पे कार्ड और एप्पल पे सर्विस है वो बैन कर दिए। तो ऐसे ही मास्टर कार्ड और वीजा पे काफी डिपेंड था इंडिया, लेकिन रुपए कार्ड आने के बाद रुपए कार्ड भी स्टार्ट होने लग गया है। रुपए कार्ड काफी ज्यादा फैल चुका है, मतलब मास्टर कार्ड ने रुपए कार्ड में मास्टर कार्ड को रिप्लेस कर दिया है एंड मास्टर कार्ड काफी बैन हो गया है। तो वही चीज है, एक ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में मिलता है मास्टर कार्ड। लाइक अब बाकी किसी को कोई पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो पूछ लो, मैं बता दूं मतलब। हाँ मतलब ऐड कर दो, कोई पॉइंट करना ऐड करना चाहे। अरे बोलो यार, ग्रुप डिस्कशन है, सिर्फ हम भी थोड़ी बोलेंगे, समझ क्या नहीं रहे। मास्टर कार्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सारे लोग बोलो भाई, सारे लोग बोलो यार। मैं ये पूछ रहा था मास्टर कार्ड बैंक प्रोवाइड। अरे ऐसा नहीं है, मतलब हम खुद से भी मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मतलब किस कार्ड नेटवर्क का चाहिए। मास्टर कार्ड चाहिए एक्चुअली मास्टर कार्ड कंपनी है जिसने सारी बैंक के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से टाई अप किया हुआ है। तो जो बैंक है वो स्क्रीन पे देखो, प्रोवाइड करेगी आपको वीजा भी करेगी, आपको डेबिट कार्ड भी करेगी, क्रेडिट कार्ड भी करेगी। आपके पास ऑप्शन है, वो क्या करना चाहते हो आप। हाँ नहीं, अगर मेरे को मास्टर कार्ड चाहिए तो मैं कहाँ जाके अप्लाई करूंगा, मास्टर कार्ड पे या फिर अपने बैंक? अरे मास्टर कार्ड एक खुद की कंपनी है, लाइक मास्टर कार्ड कंपनी है, लेकिन आप बैंक ऑनलाइन हो जाता होगा ना, ऑनलाइन हो जाता होगा। यस जब अप्लाई करोगे तो बैंक के थ्रू तुम कर सकते बता हो सकते हो उसका। कौन सी कंपनी किस बैंक का मास्टर कार्ड चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक आपको या पलाश स्टेट बैंक में Tushar, let me add on it. Okay, so what actually happens कि like तुम किसी भी बैंक अकाउंट पे अप्लाई करते हो ना, तो जो भी तुम्हारी कार्ड नेटवर्क होते हैं, रुपए, मास्टर कार्ड, वीजा, इनका टाइप बैंक से होता है, ईयरली टाइप होते हैं इनके बैंक से। तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तुम बैंक अप्लाई करते हो, उस बैंक का भी कार्ड नेटवर्क से टाइप होता है, वो कार्ड इशू होता है। So it's not like if you want a Mastercard debit card, you can just go through its website and you order a card for you. तो उनका खुद का बैंक से टाइप होता है, तुम बैंक में अप्लाई करते हो, तो जो बैंक का जिस कार्ड नेटवर्क से टाइप होता है वो कार्ड तुम्हें मिलता है। So that's the thing. And another question जो I guess A सिंह ने पूछा था कि why is it possible that we are able to make different UPI IDs from a single bank account? Like I have an account in Bank of Baroda, but I have UPI IDs from SBI, IFSC, Axis Bank, and if anyone can explain. Okay, sure. So जो यूपीआई आईडी होते हैं बेसिकली वो एक नेटवर्क होता है, एक नोड टाइप का होता है, जहाँ से तुम अपना पेमेंट करते हो, तुम अथॉरिटी दे चुके हो तो नोड्स को कि हाँ ये मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, इनको मैंने बनाया है, तो आप इनसे पेमेंट ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही यूपीआई आईडी हो सकती है, अगर तुम्हारे नाम से मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो तुम हर एक से एक सिंगल नोड बना सकते हो। वो पर बैंक डिपेंड करता है, लेकिन आपको तुम एक बैंक अकाउंट से 2 यूपीआई आईडी नहीं बना सकते। लेकिन तुम्हारे अगर मल्टीपल डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट है, तो तुम हर एक से एक नोड बना सकते हो। वो जो नोड होता है वो एक्चुअली यूपीआई आईडी होती है, वो तुम उनको अथॉरिटी देते हो कि हाँ ये मेरे बैंक अकाउंट्स है, मैंने नोड्स को क्रिएट किया है, तो दे कैन एक्चुअली पे टू विच एवर वेंडर और बिजनेसेस आई वांट। So that is what actually happens. Like yeah. So if anyone of you have any other doubt. There is one thing, जिसमें बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी प्राइमरी स्कूल्स में जैसे बच्चों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनके पैसे भेजे जा रहे हैं यूनिफॉर्म वगैरह के, तो काफी लोगों का लिंक नहीं है या फिर कोई इशू है, उनके पैसे आ ही रहे हैं, तो ये लिंक मतलब कराना इतना बड़ा इशू क्यों है? अरे लाइक आधार कार्ड से ना, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड ना बिल्कुल ऑथेंटिकेट मतलब एज ए आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया एक सिटीजन के लिए, मगर इतने सही नहीं होते। गवर्नमेंट स्कूल ही बोली ना, देख लेना मैक्सिमम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी लिखी होगी, ध्यान रखना, ठीक है।
let me tell you और this. लाइक आधार कार्ड इज, देखो तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो तुम्हें एक प्रूफ देना हुआ होगा, तो लाइक आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी कार्ड एक्ट करेगा तुम्हारा, इस वजह से वो मैंडेटरी है लाइक। मेरा अरे क्वेश्चन एक था मिनट, Okay, सेकंड okay, प्लीज, okay. ये So, करने के लिए वन सेकंड कहने का। अरे yeah, Karthik, you can go ahead, but yeah, you go ahead first. yeah, so like तूने पूछा ना like why they are like making sure that like even for the school they are like the students are getting bank account and then transacting data. The primary reason is to prevent fraud. Like in the history क्या होता था, it is like वो in the schools they pretend they are like giving out things like in the free food meal scheme and all. वहाँ पे they will tell like if they get an audit now, in that they write like they spend like 2 lakhs for this, 3 lakhs for that, but actually they are not spending it. For the uniform they'll be like they'll spend 10 lakhs. They're not keeping a track. All the everything the track is in actually a book में होता था, and they can do whatever in that book. Nobody actually can't do anything. But right now with bank accounts they have proper track. They have every transaction and details वो की रखना होता है, so that like financial fraud rate less होगा. And with Aadhaar card, they're making sure that like for the financial tax and all, for the income tax, like in earlier time, what happened is like it's a single person. Imagine me, I have 10 accounts, and then like nobody knows like I have the 10 accounts, and like what different hota tha na? Nobody have it like solid proof. It all belongs to me, so that I can, if I get a lot of amount, I can split it in different accounts, so that I don't have to pay much tax. But what Aadhaar card did is like they integrated all the accounts, so that whichever account you post, the income tax come cumulative. So like sub account के मिल के आ जाता है. Okay, Yeah, so okay, so sector one thing में I बोली थी। want to add अच्छा something before you go ahead. So what I believe कि तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कि आधार से हम बैंक अकाउंट क्यों लिंक कर रहे हैं, लाइक ऐसी क्या जरूरत थी कि आधार को इतना मैंडेटरी बनाया गया ये लाइक कि दो बैंक क्वेश्चन पूछे थे उसने, अकाउंट से लिंक करना है। लाइक एक कार्तिक ने आंसर दे दिया, दूसरा वो है जो पलाश कह रहा है। संस्कृति यही 2 क्वेश्चन थे ना उसमें, सेंस कहाँ गई? Okay, so I believe ये उसका हो गया लाइक उसका हो गया डाउट डाउट हो गया उसकी। हाँ, तो बेसिकली तो आधार इतना मैंडेटरी क्यों बनाया गया बैंक अकाउंट के लिए? ओके, सो अगर तुमने कभी भी चाइना के बारे में पढ़ा होगा कि चाइना में क्या सिस्टम चलता है, तो चाइना में बेसिकली एक डेटाबेस उन्होंने क्रिएट करके रखा है। उस डेटाबेस के अंदर आप बस बंदे का नाम डालती है गवर्नमेंट, उसकी हर एक डिटेल आ जाती है। वो कहाँ पैदा हुआ था, क्या एजुकेशन लिए, कितने मार्क्स आए थे, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितना बैलेंस है, हर एक सिंगल डिटेल। तो इसीलिए चाइना में लाइक लोग इतने कंट्रोल होते हैं कि गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो इंडिया में दे कैन इम्प्लीमेंट द सेम सिस्टम, बट इंडिया में दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसमें वो बैंकिंग सिस्टम्स को तुम्हारा टैक्स जो होता है, लाइक इनकम टैक्स जो होता है, उन सबको लिंक करना चाहते हैं पैन कार्ड को। लाइक इवन अगर तुमने कभी फ्रॉड किया, लाइक सपोज तुमने फ्रॉड किया किसी बैंक अकाउंट में, तुम एड्रेस गलत भी दे सकते हो, लाइक तुम टेम्परेरी वहां जाके रह सकते हो, तो बैंक अकाउंट दे आर जस्ट गोना ऑथराइज कि हाँ ठीक है तुम्हारा ये बैंक अकाउंट होगा। तुम फ्रॉड कर दिए, उसके बाद तुम्हारे घर से भी गायब हो गए, तो बैंक लाइक कहाँ ढूंढेंगे बैंक तुमको? तो इसीलिए आधार को मैंडेटरी बनाया गया कि एक सिंगल एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके कि अगर तुम बैंक अकाउंट में कहीं डिटेल गलत भी दी है या कहीं फॉल्ट होता है या कुछ भी होता है, तो पूरा ट्रेस किया जा सके तुम्हारी हिस्ट्री कि अच्छा आधार कार्ड में ये डिटेल है, पैन कार्ड में ये था। तो इनकम टैक्स को भी पता होता है, इनकम टैक्स भी कैन लाइक डायरेक्टली सी योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम योर आधार कार्ड। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक लिंक किया गया है एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि ठीक है, सो आधार कार्ड इज एक्चुअली द मेन की पॉइंट व्हिच आर होल्डिंग दीस थिंग्स, इनकम टैक्स, बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग। कैन यू प्लीज या संस्कृति। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, पलाश ने अभी खुद ही कहा था कि देर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन सोसाइटी। तो जो प्रॉब्लम तुमने बताया जो ये क्योर कर रहा है आधार वाला, ये तो सेक्टर 1 सेक्टर 2 का प्रॉब्लम है। मैंने जो प्रॉब्लम रखा वो सेक्टर 3 का है। बच्चों के बैंक अकाउंट में जा ही नहीं रहे क्योंकि उनका लिंक नहीं है ढंग से, और उसमें मतलब बाकी डिटेल्स ठीक है, आधार भी ठीक है, बट सिर्फ एक लिंकिंग की वजह से आधी से ज्यादा बच्चों का रुका हुआ है और वो लिंक कराना भी नहीं चाहते पेरेंट्स। आई गेस संस्कृति दैट्स अ पॉलिटिकल टॉपिक आई गेस। या लाइक उसमें फ्रॉड्स वगैरह चलते हैं ना। अरे मान लो अगर वो लिंक ना कराएंगे ना, अगर वो लिंक ना कराएंगे अपना, तो लाइक जो फंडिंग है ना, गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है 1 लाख रुपए की, लेकिन लिंक करने के बाद वो फंडिंग ब्रॉट डाउन हो गई लाइक 1 लाख टू 70,000 60,000। तो इससे गवर्नमेंट को अल्टीमेटली फायदा ही है ना। अरे नहीं, गवर्नमेंट का फायदा नहीं, ये बात गलत है। लाइक इसका अर्लियर कोई पूछा था डाउट लाइक
if I'm making a transaction like for a charity, like how can I make sure it goes to the right thing? Like same situation यहाँ पे भी है, like government are providing something, so they should make sure ना it's going to the right person. It's not like they can provide everything and it goes to some random places. Then let's just make sure it belongs to you. That's लाइक देखो आधार कार्ड लिंक कराना इज नेसेसरी। लाइक अब देखो वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो चेक कर सके कि उनका आधार कार्ड लिंक है, लाइक वो अपडेटेड नहीं रहते इन सब चीजों से। अब ये उन्हें खुद रहना पड़ेगा ना, लाइक लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं ना इंडिया में। नॉट लाइक कि गवर्नमेंट इज जस्ट एडवर्टाइजमेंट, लाइक एडवर्टाइजिंग की ठीक है आधार कार्ड लिंक करवा दो। Government is actually spending crores on this problems scheme. in our country is because like because Oh, that illiteracy, government like financial literacy के कारण होते हैं, थोड़े बैंकिंग रूल्स के पता ना होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। It's not even the fault of banking or not neither the fault of the people who are not अरे illiterate. नहीं, it's the fault of the people only, like It's like the proper communication between the people and the authorities doesn't really happen. A proper communication. yeah, actually the mistake is not about linking to the account. The thing is like they should inform us like how to do, what to do. Like like the system should inform everyone like steps kya is that if they can get a bank account, if they can get an Aadhaar card, they can definitely do a linking. Okay, yeah, so I think Anushka asked a doubt, no? Yeah, there's another doubt in the chat section. Anushka actually asked it. क्या है? Yeah. So it was actually, you explain Anushka. हाँ, लाइक मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे पहले SBI में होता था, लाइक मदर फादर या और भी लोग कैसे लिंक्ड अकाउंट्स होते थे, जॉइंट अकाउंट जिसको कहते थे। बट नाउ अगर आपका मतलब आपको सिर्फ एक अकाउंट अलाउड है, आप अगर आपका जॉइंट है और सिंगल है तो यू हैव टू यूज लाइक जस्ट वन अकाउंट, मतलब आपके नाम से सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए। लाइक जॉइंट अब वो लोग नहीं अलाउ करते, इसका क्या रीजन है, लाइक ऐसा क्यों है? मेरे पेरेंट्स के Actually, can you tell which bank this is? SBI. या लाइक मतलब एक ही अकाउंट आपको अलाउड होता है, एक नेम से दो अकाउंट दे विल नॉट अलाउ। I pass search for multiple accounts instead of joint. या that's my question. Okay, so there's one basic thing कि like बैंक अकाउंट्स के जितनी भी गाइडलाइंस होते हैं वो सारे RBI रिलीज करता है। तो वन थिंग कि कोई पॉलिसी चेंज हो रही है या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेक्स्ट का, तो पूरा RBI उसको फॉलो करता है, उसी के थ्रू होता है। सो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हो रही है कि बैंक अकाउंट में लाइक जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, वो RBI की गाइडलाइंस के थ्रू हो रहा होता है। कभी कभी होता है कि लाइक जो आधार कार्ड लिंक होता है, पैन कार्ड लिंक होता है, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम कि कोई फेक लाइक दो लोग के ऊपर बैंक अकाउंट है लेकिन किसी एक ने लिंक करवाया अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि लाइक फिर दूसरा बंदा अगर फ्रॉड कर दे तो क्या होगा। अरे नहीं, लाइक ये देखिए कोई बात नहीं हुई, मतलब लाइक एक बंदा लिंक कराएगा तो ऑटोमेटिकली दोनों के लिंक हो जाएंगे। बट इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि लाइक अगर दोनों को लिंक कराना पड़ेगा ना, तो एक तो पहली बात तो कनेक्टिविटी इश्यूज आ जाते हैं। सिंपल मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। और दूसरी बात लाइक इसे एज अ सीरीज कनेक्शन समझ ले, लाइक उसे लाइक बीच में मतलब अगर हमें किसी जैसे 3-4 बैंक अकाउंट आपस में लिंक है तो देख हमें एक और डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा और मतलब मैकेनिज्म्स लगानी पड़ेंगी कि अगर हम जो चेंज बीच वाले में कर रहे हैं वो किसी और में उसी वजह से कोई और ट्रांसफर होने में डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा like I wanted to say something. अभी I just woke up my father and asked him कि actually आपके joint account में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, like do you like did you get any message or sort of anything, and they said like absolutely everything is fine, everything is working. Like my dad has his own account. काम कर रहे हैं Sorry to interrupt. No, sorry to interrupt. Like मैंने ये पूछ रही हूँ मैं, like जैसे मेरी मम्मी का पहले एक अकाउंट था, I'm just giving the example and that's why I asked. Like मेरे मम्मी का पहले एक अकाउंट था उनका सिंगल, okay, and एक था joint one with my father. But now the bank says कि like you have to use only one account. You have to go with either your joint one or your personal one. Now have you get my point? Like what I have asked? समझ गया। करना पड़ेगा एक को एक Actually, I just checked. I That's what I accessed asked my SBI father. guidelines Like, right now. They mentioned that you can have multiple SBI accounts. The only thing is you should have the same customer ID. That's the thing defined there. Okay. You can have multiple accounts, but then same customer ID. What like SBI guidelines? Okay, you can go ahead with your GD. Yeah, thank you. या लाइक अपन अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है लाइक देखो मैं विवेक सर के सेल में समझाता हूँ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री रिलेटेड ना, इंडस्ट्री मतलब मोस्टली इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में जुड़ जाएंगी
और वो एक छोटी कंपनी को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। लाइक ऐसे समझो शार्क टैंक आया था, कई सारे शार्क्स अपनी वो कंपनीज हैं, लाइक उन्हें ऐसे समझो वो उनकी अपनी कंपनी है, तो वो किसी छोटी कंपनी मतलब जो छोटा मतलब छोटी कंपनी है उसे ऐसा ब्रांड बनाना है उन्हें, तो लाइक वो 3-4 कंपनीज उस छोटी कंपनी की हेल्प करके उसे आगे बढ़ाएंगी। अब ऐसे समझो कि लाइक ट्रिपल आई टी इलाहाबाद को ऐसा बड़ी कंपनी मान लो, ठीक है, तो वो इट इज हेल्पिंग ट्रिपल आई टी लखनऊ बाय सेंडिंग देयर प्रोफेसर्स और रिक्रूटिंग प्रोफेसर्स फॉर ट्रिपल आई टी लखनऊ एंड सेंडिंग देम हियर कि वो हमें पढ़ा सकें। लाइक समझ रहे हो कि बाकी जैसे अभी आईआईटी आई थिंक कानपुर के साथ ही कोलैबोरेशन हुआ है ना उसका इंक्यूबेटर सेल का, तो लाइक वो एक बड़ी कंपनी हो गई, वो हमारे कॉलेज को जैसे फंडिंग दे रही है या फिर थोड़ी और सपोर्ट कर रही है उठाने के लिए, तो ये हो गया एज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब देखो लाइक अब ये आता है एनपीसीआई, लाइक मैंने बताया था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब like all kinds of electronic payment you do via mobile or via any website, like तो वो उसका सब कुछ देखेगा, वो एनपीसीआई ही देखेगा, एनपीसीआई ने ही यूपीआई बनाया है, ऐसे कह सकते हैं। लाइक जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा, लाइक तुम्हारी जो अकाउंट डिटेल्स हैं, अकाउंट पासवर्ड्स हैं, लाइक कोई प्राइवेट पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू तुम पे करते हो, तो एनपीसीआई ये इंश्योर करेगा कि लाइक जो तुम्हारा पासवर्ड है वो पेटीएम के पास ना जाए, मतलब एज ए सिक्योर वे में रहे, समझ रहे हो, HTTPS टाइप का। लाइक अब जैसे ऐसे ही भीम यूपीआई पे भी आते हैं। और लाइक एनपीसीआई के बारे में और बता देता हूँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक मैंने बोला था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन समझाया था मैंने, तो एक एज अ मतलब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ही है कि आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया, और इसके अंदर कई सारी मतलब बैंक्स हैं जो इसे प्रमोट करती हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता रहे, ठीक है। अब एनपीसीआई ने कई चीजें बनाई, लाइक नेशनल फाइनेंस स्विच, भीम ऐप, और ये रुपे जो भी भारत क्यूआर, लाइक रुपे अभी पलाश ने समझाया था, ठीक है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम आई गेस सुना होगा। अब लाइक इनके बारे में डिस्क्रिप्शन तो कोई नेसेसरी है नहीं। हाँ तो अभी यूपीआई पे हाँ लाइक यूपीआई पे आ जाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो जो ये एनपीसीआई था ये बेसिकली आरबीआई ने बनाया था। मेन मकसद था कि आरबीआई ने रियलाइज किया कि इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, तो जिस कारण वो क्या रहा था कि लाइक जो स्मॉल वेंडर्स हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं डिजिटल वेज, दे यूज कर रहे हैं कैश वगैरह को। सो दे वांटेड अ वे कि लोकल वेंडर्स जैसे विलेज एरियाज में भी हो गए या फिर जो लोकल वेंडर्स हैं वो भी डिजिटल वेज यूज करें अपनी पेमेंट्स के लिए। सो दे मेड दिस यूपीआई सिस्टम। तो यूपीआई में होता क्या है कि तुम्हें यूपीआई के लिए दो चीज़ें चाहिए, तुम्हारी यूपीआई आईडी और यूपीआई पिन। तो उसकी मदद से तुम अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। नाउ पहले तुम्हें अपना एक बार अकाउंट अपनी यूपीआई आईडी के साथ लिंक कराना होगा, उसके बाद तुम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करोगे, लाइक यू विल स्कैन अ क्यूआर कोड। हाँ, और लाइक मैं एक चीज बता देता हूँ यूपीआई के बारे में। यूपीआई मतलब है क्या, मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इससे फुल फॉर्म को छोड़ो, ये वही है लाइक तुम्हारे कई सारे बैंक अकाउंट्स होंगे वो, और या फिर और तुम्हारे फोन से ना वो लिंक कर देगा, लाइक ऐसे समझो, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एज अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक कर देता है, जिससे तुम ट्रांसफर एक से दूसरे बैंक अकाउंट में कर सकते हो, समझ गए, ठीक है, बस यही सिंपल वर्ड्स में समझ। हाँ हाँ बेसिकली इसका काम है कि जैसे तुम अगर नेट बैंकिंग करते हो, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ओटीपी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बैंक की तो तुम्हारा जो कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है वो कि ओनर कौन है, ये कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है। तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन काफ़ी आती है। तुम्हारे पास जिस नंबर तुमने रजिस्टर किया है वो नंबर तब होना चाहिए जब तुम पेमेंट कर रहे हो। तो यूपीआई क्या करता है, ये सब फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है। वो डायरेक्टली कह रहा है कि तुम स्कैन करो क्यूआर कोड, तुम अपनी यूपीआई आईडी डालो, तुम अपना यूपीआई कोड डालो और पेमेंट है। और लाइक अब इशू क्या आ रहा था कि बेसिकली जो यूपीआई का नीड था ना, उसमें ऐसे तो बहुत सारे पहले से पेमेंट गेटवेज थे कि मतलब जैसे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, लेकिन पर उसमें क्या होता था, टाइम लगता था, कुछ घंटे लग जाते थे। तो इसलिए जो इंस्टेंट पेमेंट का सोल्यूशन था वो यूपीआई के थ्रू था कि मतलब वो कभी भी तुम कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा सैटरडे संडे का नहीं होता, 24/7 कभी भी यूज़ कर सकते हो। और मतलब कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करा उससे। I don't know about like अभी, but पहले like maybe 5-6 years ago अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया नेट थ्रू नेट यूजिंग, तो उनको पता होगा कि पहले तो एक दिन पहले तुम्हें अकाउंट ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांजैक्शन होने के लिए 2 दिन लगते थे। तो those were the days. अभी तो यूपीआई like 2016 में ही आया था।
2016 से यूपीआई 2016 में आई थिंक इट वाज आई थिंक तब भी बैंकिंग सिस्टम या लाइक अब देखो ना लाइक उसमें यूपीआई के डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था ना, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा ग्रो करा था एकदम लाइक से। देखो मतलब सबसे सिंपल सा बेनिफिट यही है यूपीआई से। तुम मैं अभी फोन का रिचार्ज करना चाहूँ, मेरा कल ही खत्म हो गया तो मैं रात को ही कर दिया। अब मुझे जाना नहीं पड़ा कि पास वाले अंकल के पास रिचार्ज कर देना। वो भी नाटक करते मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, भी नहीं कर रहा। और एक समझ इसमें ये होता है कि मतलब जैसे किसी वॉलेट वगैरह में पहले ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट अरे के थ्रू ही हाँ हाँ, होता है। अरे नहीं देख, उसके लिए भीम यूपीआई ना गवर्नमेंट ने वही बनाया। भीम यूपीआई छोटे ट्रांजेक्शन के लिए है, बट वो ही क्या करता है, वो उसमें वॉलेट का कुछ चक्कर नहीं है, वो सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देता है। लाइक अब एक काम करते हैं, लाइक यूपीआई पे कुछ बचा है अभी मतलब आदमी आशीष? यूपीआई में एक पार्ट बचा हाँ है कि जो अभी जस्ट इस फेब के महीने में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया या मार्च में स्टार्टिंग में, तो एक्चुअली है क्या, यूपीआई ऐप के थ्रू चलता है, जिसके लिए आपको चाहिए स्मार्टफोन। और इंडिया में 40 करोड़ पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। सो बेसिकली 40 करोड़ पॉपुलेशन यूपीआई का यूज नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी गवर्नमेंट लेके आई है यूपीआई 123, जिसके थ्रू क्या है, आपके जो नॉर्मल बटन वाले फोन होते हैं, आप उसमें भी यूपीआई की सर्विस यूज कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि जहाँ पे लोग स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे, वो भी इस यूपीआई टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्रिएट अ सेंट्रल पोर्टल ऑफ देयर अकाउंट। ये अकाउंट क्वेश्चन क्योर मतलब इससे ज्यादा फ्रॉड के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? और नहीं, क्योंकि देखो कर क्या रहा है, तुम्हारा जो फोन नंबर तुमने अपने एक तुम्हें लिंक करना पड़ेगा अपने कार्ड के साथ, उसके बाद तुम्हारी आईडी बन रही है, तो उसमें फ्रॉड का चांस इसलिए कम हो जाता है, या एक वेरिफिकेशन होगी पूरी। इट्स लाइक कि और मतलब तुम डेबिट जैसे कार्ड यूज कर रहे हो, लेकिन पर तुम्हें एटीएम पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा डेबिट कार्ड से पैसे जा रहे हैं, बीच में कहीं और स्टोर नहीं हो रहे हैं, हाँ, बस उसको इजी कर दिया। लाइक तुम्हें होता नहीं है, तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तुम्हें ओटीपी डालना पड़ता है कि तुम्हारे फोन पे एक ओटीपी आएगा, तुम वो डालोगे। अब तुम्हें वो सब मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हो जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट में तो चोरी करना आसान है, उन्हें सिर्फ फोन कैसे उठाना आसान है? होगा। पिन तो अरे इसमें भी नहीं लगता है यूपीआई ना, पिन पिन भी तो डालना पता होना पड़ता चाहिए। है। हाँ पिन यूपीआई पिन पिन तो चाहिए, पता जो कि होना आप चाहिए। खुद बना के मतलब रखते हो। मतलब उन्हें ज्यादा क्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा इंक्रिप्शन नहीं है इसमें बस अरे एक देख मैं बताऊँ तो पेटीएम क्यों फेमस हुआ है, क्योंकि वो बहुत सिक्योर है। लाइक उसे क्रैक करना इतना आसान नहीं है। तुम इंटरनेट पे पढ़ेगी ना, तो लाइक उसकी मतलब काफी बढ़िया सिस्टम बना रखा है पेटीएम का, इतना क्रैक करना आसान नहीं है। लाइक पेटीएम के बारे में भी के बारे में पेटीएम, अभी गूगल ज्यादा पे, सबका यही इन्फॉर्मेशन है। भी नहीं है और वो ज्यादा सेफ मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा। नहीं, क्यों सेफ नहीं है? लाइक अब देख, अब इतना अवेयर रहना पड़ेगा कि तुम्हारे पास गलत मैसेज आ रहा है तो तुम इसे समझ जाओ। हाँ, कि हाँ किसी तो को अपनी मतलब यूपीआई यूजर पिन शेयर ओरिएंटेड नहीं हो कर गया रहे हो। वो, अब सिर्फ हमें उन्हें ब्लफ करना है और वो कर सकते हैं जो चाहें। देखो guys, लाइक एक minute. Let me tell you the most common ways in which fraud can happen. They literally call you as if you alias, as an alias, like they'll use some other company name and they'll literally call you और they ऐसे बोलेंगे आपको कोई दिक्कत है, कुछ है तो पहले अपने ओटीपी पूछेंगे। If anyone ever asks any OTP, उसी वक्त कॉल कर दो, ब्लॉक कर दो, फ्रॉड मार दो, खत्म। सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं देखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। किसी ने भी कॉल पे they're pretending to be some company or something, maybe बैंक ही मान लो, कुछ भी मान लो, if they're asking any OTP, any bank details or anything, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ दो, एकदम उसी वक्त कॉल काट दो, ठीक है, बात करने की कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। I wanted to या add a लाइक point in this slide, like this slide, na, like as they give cashback, whether they are facing losses. So, like in Google, I'm just taking the example of Google Pay. When is the last time you actually received a cashback? So everybody these days like receives actually what do you get? Boat का coupon, उसका coupon 10% इसको दे, उसको 10%. या They're actually या लाइक growing देखो, the अगर sales. तुम्हें वो They're actually increasing the sales of the other company. For example, I get a 10% coupon on boat example. I go to a boat store, I like boat ka this one, and I buy a boat product. I'm using this coupon. They're actually the Google Pay is getting commission from them. And we are like the boat is paying that 10% cashback, which will be Works like some exactly other the way So option. both the YouTubers get companies are getting sponsors. benefits. yeah, like we will come upon that point very soon. Okay, like let's start with the examples of UPI. Okay, like सबसे पहले पेटीएम, ठीक है, पेटीएम। अब देखो जैसे पेटीएम हो गया या फिर भीम पे हो गया या फिर गूगल पे हो गया। अब यू हैव सीन दैट कि दे गिव अस लाइक कैशबैक ऑफ अस एंड लाइक स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं, लाइक कैशबैक्स और कूपन कोड्स हो ठीक जाते है, हैं। लाइक कूपन कोड्स वगैरह भी आते हैं। अब देखो लाइक उन्हें ना उसमें ऐसा लॉस ही होता है। लाइक इफ यू हैव सीन दैट कि जोमेटो तुम्हें पहले आई थिंक पहले जो तुम 200 से ऊपर करते हो तो आई गेस उसमें 50% ऑफ देता है, तुम आई गेस 60%।
लाइक 50-40% ऑफ देता है गेस। तो वो जोमेटो ही लॉस में जाता है, वो बस तुम्हें ऐसा हैबिट डाल रहे हैं कि तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, तुम खुश हो रहे हो, लाइक तुम उसे बार बार यूज करोगे, समझ रहे हो? लाइक अब देखो जैसे ये कस्टमर पॉइंट है ना, रिटेंशन हो जाती है। लाइक Yes. हाँ, लाइक तुम्हें लग रहा होगा कि वो बहुत जैसे कि मैंने रिचार्ज करा, लाइक 199 का रिचार्ज करा, ठीक है, 28 दिन का, और वो है ना, ठीक है, 1 GB पर डे। तो लाइक अब देख पेटीएम क्या करेगा, उसमें से 1 या 2 रुपये अपनी साइड रख लेगा, बाकी 197 लाइक जियो का है तो जियो के पास चला गया, जिसमें से जियो भी आई गेस अराउंड 70-80% तो प्रॉफिट कमाता ही है, उसमें 70% प्रॉफिट कमाता है। अब देखो लाइक जैसे मैंने पहला जो ट्रांजेक्शन किया था, लाइक पहला मैंने 1 GB का रिचार्ज किया था पर डे का, लाइक 20 रुपए का, पता नहीं 16 रुपए का हुआ था, जिसमें से मुझे 12 रुपए पेटीएम ने कैशबैक कर दिया। अब वो बहुत बड़े लॉस में गया है वो मुझे वापस देके, लाइक क्योंकि कंपनी ने तो नहीं दिया हुआ ना, कि लाइक कंपनी ने तो नहीं दिया हुआ इतना, 4 रुपए में नहीं दिया हुआ, 4 रुपए से कम में तो नहीं देगी ना कंपनी मुझे, लाइक वो पेटीएम ने लॉस दिया क्योंकि मुझे आदत डल जाए कि लाइक मुझे अच्छा लगे कि ये मुझे कैशबैक ऑफर्स देते हैं, तो इस वजह से होता है। Many, really actually, to be honest, if we consider like, तो ये मेरी जो IPO जो नया IPO निकले, even Zomato का IPO like I think last year निकले थे ना, इस साल निकले थे। Yes. Okay, हाँ, so वो actually loss, मुझे लग रहा है Zomato बहुत flourished है, like बहुत बढ़िया, हाँ है, but it's actually loss making। लाइक वो लॉस करके प्रॉफिट कमाता है, ऐसे समझो, लाइक हाँ, like it's like to make the audience base, सबसे पहले एक audience base बना ले, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाने के लिए टाइम है करके। अब लाइक जोमेटो देखो पेटीएम ने जैसे जोमेटो लॉस में है अभी, जोमेटो लॉस में है अभी आज की डेट तक। हाँ वो अभी भी, हाँ भाई वो अभी भी लॉस में है। लाइक Zomato, देखो पेटीएम सब लॉस में हाँ, है। लाइक अब देखो जैसे मैं बताया था, अब जैसे देखो कई सारे पेटीएम और गूगल पे, भीम पे, फोन पे वगैरह, देखो जो भीम पे है वो गवर्नमेंट का है, और वो सीधे बैंक टू बैंक अकाउंट जो मनी ट्रांसफर करता है। अब लाइक पेटीएम है, पेटीएम के पास पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम उस पे है, और पेटीएम वॉलेट होता है, पेटीएम पे बैंक भी लिंक हो जाता है, और आई गेस पेटीएम बैंक भी कुछ होता है आई गेस उस पे, है ना? तो लाइक उसमें क्या होता है, पेटीएम क्या करेगा, पहले बैंक से अपने पेटीएम वॉलेट में मंगा लेगा, तो वो ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो या सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो पेटीएम ने क्या करा है कि 10,000 से ऊपर के 10,000 रुपीज से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे वो आई गेस 1.5 से 2% तक कुछ फी चार्ज करने लग गया है, ठीक है, लाइक इससे वो कमाता है। उसमें देखोगे तो कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, पेटीएम पे एड्स आते रहते हैं, तो वो उससे कमाता है। अब लाइक तुम जैसे, अब वो और कैसे बेनिफिट कमा सकता है, लाइक एक तो डीटीएच रिचार्ज करोगे तो कुछ परसेंट पेटीएम पे जाएगा, तो वो उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब लाइक रेलवे की टिकट्स बुक करनी है, या मतलब सब काम पेटीएम से हो रहे हैं, शॉपिंग भी आई गेस, शॉपिंग तो नहीं होती, लाइक मोबाइल का रिचार्ज हो गया, या फिर गैस सिलेंडर भी बुक करना है तो वो भी पेटीएम से हो जाता है, मूवी टिकट्स बुक करनी है, रेलवे टिकट्स बुक करनी है, तो सब काम पेटीएम कर देता है। शॉपिंग हो जाती है। पर वैसे अगर हाँ। देखोगे तो यूपीआई एप्स में पेटीएम नंबर 3 पे आता है, नंबर 1 पे फोन पे है, और नंबर 2 पे गूगल पे। सो पेटीएम लॉस में होने के बाद भी मार्केट शेयर उतना नहीं है उसके पास, मेजोरिटी मार्केट शेयर इन दो कंपनीज के पास है। नहीं, आई गेस Market share 9%, क्योंकि जब अरे आई गेस UPI introduce 9% हुआ था ना, मार्केट शेयर है, 9% मार्केट शेयर है उसके पेटीएम के पास। पास, और क्रेडिट बाकी पर दोनों के पहले पास था 40 जब और गूगल 30%। पे है ना, गूगल पे के बाद उसका क्रेडिट थोड़ा कम हो गया, पहले उसका मार्केट शेयर काफी था। हाँ, जब से Like- गूगल पे आया तब से कम हुआ है। Aryan Nautil, would you like to tell us something about credit only? Like you said कि लॉस में जा रहा है, आर्यन। अरे भाई बोलना फटाफट यार। लाइक अब देखो नहीं बोलेगा, अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि तुमने देखा होगा जैसे जैक काउंसलिंग हो गई है, जोसा काउंसलिंग हो गई, तुमने जैसे 1-1.5 लाख भरा, 70,000 भरे थे पहले, ठीक है, 73,000। अब तुमने देखा होगा कि वो काफी टाइम तक, जब अब ऐसा होगा कि लाइक मान लो 5 लाख लोगों ने, बल्कि ज्यादा ही भरा होगा, लाइक आई गेस 10 लाख लोगों ने जैसे फीस दी बैठने की, जिसमें से लेट सपोज कि 1 लाख को मिल गई, तो 9 लाख बच्चे बचे, तो उनके पैसे जो इसके पास रहेंगे, जैक का एग्जांपल है ना, जैक का, ठीक है, लाइक जैक के पास जैक है ना, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, आई गेस जैक एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो लाइक कि मतलब गवर्नमेंट के अंदर आता है ना वो। अब वो, हाँ ठीक है आता है, बट वो पता है वो प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, जैक कमेटी कैसे प्रॉफिट कमा लेती है, लाइक वो बैंक्स को दे देगी, ठीक है, समझ रहे हो, प्राइवेट बैंक्स को दे दिया उसने, प्राइवेट बैंक्स को दे दिया, लाइक तुमने देखा होगा तो जैक का आई गेस 1 हफ्ते में या फिर 10 दिन में आता है, लाइक कि राउंड 1 के बाद राउंड 2, मतलब 7 से 8 दिन का गैप लेते हैं, तो लाइक तुम देखोगे तो 2 महीने खिंच जाते हैं इस चीज में, और 9-10 लाख बच्चों के पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है, समझ रहे हैं इस पे, कि लाइक 9-10 लाख बच्चों के तुम देखोगे तो कई 85 करोड़ हो जाएंगे, तो वो लाइक वो बैंक में डिपॉजिट हुए होते हैं, तो उससे इंटरेस्ट मिलती रहती है उन्हें, जितने टाइम वो रखेंगे उतनी ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगी। अब ऐसे ही पेटीएम करता है, लाइक अब जैसे जो वॉलेट पे पैसे रखे रहते हैं ना तुम्हारे, तो वो क्या करता है, उन्हें
जो वो उसने बैंक से ब्रांचेस बना रखे, लाइक बैंक से वो अपन कनेक्ट कर रखा है अपने आप को कि लाइक वो उस पर इंटरेस्ट लेता रहता है, जितना भी तुम्हारा अमाउंट वॉलेट में पड़ा हुआ है तो वो थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट करके लेता रहेगा बैंक से, तो ऐसे वो बहुत प्रॉफिट कमा लेता है। लाइक कोई और पॉइंट में यूपीआई से रिलेटेड ही रह गया कोई? यही था, यूपीआई 1 2 3 यही था एंड पॉइंट। ठीक है, ठीक। लाइक किसी को कोई पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो बता दो। कोई नहीं करेगा? हेलो, कोई तो बोलो यार, पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो बताओ। कंटिन्यू कर, तू आगे ग्रुप करने वाला नहीं है शायद, मन नहीं किसी का। अरे आई गेस हो गया ना जीडी का, वैसे 1 घंटे की होती है। लाइक ग्रुप डिस्कशन है यार, कोई हम तो स्पीच हाँ हाँ चलो पार्थ, रिकॉर्डिंग हो रही एक है। काम करो, अरे अगर रिकॉर्डिंग ऑफ किसी कर का लो डाउट ना, वगैरह है तो बताओ। यस सर। और खैर काफी अच्छा, काफी एफर्ट लगाया वॉलंटियर्स ने, काफी अच्छा करा। बट चलो तो बाद में बात करते हैं तुम लोगों से। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, जो मतलब बाहर से ही चल गए। देखो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी बोल सकता है, लाइक इट्स जस्ट वी गाइस, हम बैच में से यार आराम से कुछ भी पूछो नॉर्मली। ओके एक अरे यार महीने में मतलब कॉलेज में सर मिलने वाले हैं कोई सब। वाले पूछेंगे, कोई कुछ भी पूछ लो, ऐसा कुछ अरे इशू नहीं लाइक देख इसने भेजा ना कि लाइक हाउ कैन वी बी एश्योर दैट एप्स लाइक गूगल पे, पेटीएम डोंट मिसयूज। देखो तूने पबजी का सुना होगा कि लाइक कि मतलब कि डेटा लीक होता है, ठीक है। अब देख जैसे मैंने अभी बताया था कि एक होता है मैंने बताया था ना एनआईईसी बताया था I guess। हाँ एनपीसीआई तो एनपीसीआई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कि वो एश्योर करेगा ना कि तुम्हारा डेटा कहीं पे लीक ना हो, समझ रहे हैं? कि अगर वायर में से करंट लीक हो जाएगा तो फिर तुम्हें वायर में से करंट लीक हो रहा हो तो तुम्हें करंट आ जाएगा ना, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ऐसे ही एनपीसीआई एश्योर करेगा कि तुम्हारा जो पर्सनल डेटा है वो किसी कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट कंपनी भी अप्लाई नहीं कर सकती। लाइक भीम पे के पास भी नहीं चाहता वो कि तुम्हारा कोई प्राइवेट डेटा है, लाइक तुम्हारे पासवर्ड वगैरह नहीं जाएंगे, ये सब, ठीक है। Parth, I want to add one thing into it. या पलाश। हाँ, so like ये जो क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि गूगल पे या पेटीएम हमारा डेटा मिसयूज नहीं करेगी। तो वन थिंग दैट वी शुड बी लाइक वी शुड नो कि ये जो कंपनीज होते हैं, जो नेटवर्क्स होते हैं, ये मिसयूज लाइक ये तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स नहीं हो सकते, लाइक पेन, सीवीवी, कार्ड डिटेल्स। बट तुम किन लाइक यूजुअली वेबसाइट्स पे पेमेंट करते हो, कौन से टाइप्स की शॉपिंग लाइक कौन से डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप शॉप कर रहे हो, कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सारी डिटेल्स इन कंपनीज के पास स्टोर होती है। एंड व्हाट दे एक्चुअली डू विद इट, ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, लाइक अगर तुमने नोटिस किया हो, गूगल पे तुम कोई वेबसाइट पे बार बार फ्रीक्वेंटली पेमेंट करो, you will start getting ads of that website into your YouTube and into different websites pages browser। तो वो क्यों होता है? ये जो कंपनीज होता है इनका मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम यही होता है, ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या कुकीज एक्चुअली। तो ये कुकीज आती कहाँ से? इनको कैसे पता कि हम वो जा रहे हैं? वन थिंग इज कि हाँ तुम ब्राउजर पे बार बार किसी फ्रीक्वेंटली किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स वो तुम्हारी डिटेल्स स्टोर हो जाती है, वहां से एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। अनदर थिंग, जो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज होते हैं, पेटीएम एंड गूगल पे ऑफकोर्स, ये तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बार तुम किस वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हो फ्रिक्वेंटली, वहां से ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन रिटर्न टू दिस इन्फॉर्मेशन वो इनको पैसे देती है। So that is one thing कि हाँ Google Pay and Paytm of course like they can't store your personal information, but they do share these small details कि तुम किन वेबसाइट पे frequently जा रहे हो with the advertisement companies to make sure you get personalized advertisement according to your like कैसी तुम्हारी favorites हैं, like हाँ like किन वेबसाइट्स पे ज़्यादा prefer करते हो। So that is another thing। अच्छा हाँ, तो एक्चुअली मास्टर कार्ड किसने कवर किया? तुषार तुमने किया था ना? तुमने वो पॉइंट देखा था जब 22 जुलाई में लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि लाइक यू इन नो मोर मास्टर कार्ड कैन बी इशूड एनीमोर। या मैंने बोला था, एक किया था वो पॉइंट। हाँ कवर किया था मैंने। वो एक्चुअली इसलिए क्या था क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं थी, जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो हाँ बिल्कुल। कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, अगर मास्टर कार्ड से इंटरनेट ट्रांजैक्शन की है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कुछ सेकंड्स के लिए एन्क्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी और वो इंडिया के इंडिया में वापस आ जाएगी, लेकिन वो फॉरेन वाले स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर कार्ड ने वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की उसने वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली अपने यहाँ पर। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया कि मास्टर कार्ड को बैन करने का। तो एक्चुअली देखो बहुत लोगों को पता है ना कि मास्टर कार्ड और ये वीजा एक्चुअली ये इंटरनेशनल कंपनी से, मतलब सर यूएस बेस्ड कंपनी से, ये फॉरेन वाली चीज है। तो पॉइंट क्या है ना, एक्चुअली देखो दे बेसिकली स्टोर द डेटा ऑफ स्टफ, लाइक मतलब तुम कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हो वगैरह वगैरह। ओके, दे हैव द डिटेल्स। पता है ना, वो नेटवर्किंग होता है,
लाइक कार्ड नेटवर्क्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, वो डिटेल जब वो एक टाइप का स्टोरेज करते हैं तुम्हारे सारे डेटा, तो वो ना उनके जो डेटा हाउसेस हैं वो इंडिया में नहीं थे, ठीक है, वो थे तुम्हारे यूएस में या मतलब अदर कंट्रीज थे, आउट ऑफ इंडिया में थे। तो पॉइंट क्या था, बिकॉज सी इंडिया में तो रूल्स हो सकते हैं, यू कैन एक्चुअली लीगल, तुम उसे गाइड कर सकते हो, ठीक है, तुम उसे मॉनिटर कर सकते हो, बट व्हेन इट गोस आउट ऑफ इंडिया, व्हाट इंडिया कैन प्रोबेबली डू इज प्रीटी हार्ड, ओके, इट बिकम्स लाइक नेशनल अफेयर। तो इसलिए इंडिया ने ऐसे किया था कि इन सारे कंपनीज को बोला था, देखो यार तुम अपने लोकल स्टोरेजेस ना, तुम्हारे जो ये स्टोर हाउस हैं, तुम्हारे ये जो जहाँ पे तुम स्टोर कर रहे हो सारा डेटा वगैरह, वी नीड देम इन इंडिया, ठीक है, सो दैट द इंडियन के जो डेटा है वो इंडिया में रहे, सो दैट यू डोंट यूज इट समवेयर आउटसाइड ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह करके, ठीक है। सो जब सबको भेजा था, वीजा एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द थिंग, बट मास्टर कार्ड डिडंट रियली कैंडिडेट ऐसे, उन्होंने एग्री इन द सेंस दे डिडंट रियली डू एनीथिंग रिगार्डिंग दोज गाइडलाइंस व्हिच वर प्रोवाइडेड बाय इंडिया। सो उसके बाद क्या हुआ था कि इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में डिक्लेयर किया था कि 22 जुलाई 2021 आई गेस, राइट ना, तो उस डेट में, हाँ, तो उस डेट में उन्होंने बोला। उसके बाद देखो अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं मास्टर कार्ड के, दे कैन यूज इट, लाइक अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट विल बी हेक्टिक अगर सब कुछ निकाल देंगे, बट न्यू कार्ड इश्यूज नहीं होंगे करके उन्होंने बोल दिया, बिकॉज दे डोंट रियली कंप्लाई विद द गाइडलाइंस व्हिच वी प्रोवाइडेड करके। अभी मुझे पता नहीं कि डिड दे रियली डू इट और नॉट, तुषार एनी नहीं कर दिया वो, एक्चुअली कर बैन दिया? हुए। पहले एक्चुअली एसबीआई बैंक में आता है, और एसबीआई बैंक में आप जाओगे कार्ड बनवाने तो बाई डिफॉल्ट मास्टर कार्ड इशू कर रहे थे कुछ सालों पहले तक। मैंने भी एसबीआई बैंक में कार्ड बनवाया तो उन्होंने बाई डिफॉल्ट मास्टर कार्ड इशू किया मेरे को, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी वो रुपए कार्ड और वीजा कार्ड पे रिले कर रहे हैं वो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कंप्लाई किया वो जो रूल्स है, मतलब उन्होंने बनाया अभी, हाँ लाइक हाँ मास्टर कार्ड इशू कर रहे नहीं, हैं? मास्टर कार्ड ने रूल फॉलो किया नहीं है तो अभी भी बैन ही है मास्टर कार्ड, वो इशू हो नहीं रहे अभी में। अच्छा, इसलिए अभी कुछ तक फॉलो हो नहीं रहा किया। है नहीं ऐसा अब किया किसी नहीं का है। डाउट है तो क्लियर कर दो, अदरवाइज रैप अप करो। या लाइक वी आर एट द एंड ऑफ द जीडी, सो गाइस इफ यू हैव एनी डाउट्स अभी ऐसा आराम से बोलो, बात कर लो, कुछ भी है। अरे लाइक देखो, लाइक अवनीश ने बोला ना कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से देखो पहली बार तो ट्रांजेक्शन नहीं, उससे पैसा निकाला जाता है, ठीक है ना। अब पैसा निकाला जाता है तो तुम यूज कर सकते हो, पता है, बट बहुत स्पेसिफिकेशन तुम्हें बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कुछ ट्रांजेक्शन फीस अलग लगेगी, बट हाँ पॉसिबल है। लाइक मैंने अभी इंटरनेट किया था, कहते ही लाइक मुझे भी नहीं पता था ना, ग्रुप डिस्कशन है। हाँ है ना। और एक कोई यूपीआई की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था कि हाउ सिक्योर इट इज। सो आई थिंक उसमें एक पॉइंट हम ये डाल सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी उस चीज़ की कितनी है। सो लाइक यूपीआई वाज अ टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया एंड नाउ मैनी अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर हो गया और भूटान, ये सब कंट्रीज भी क्या कर रही हैं कि एनपीसीआई के साथ टाई अप कर रही हैं टू लेट दिस टेक्नोलॉजी बी इन देयर कंट्री एज वेल। सो आई थिंक द फैक्ट कि और कंट्रीज भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाह रहे हैं शोज कि इस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कोई एक वैलिड पॉइंट या सिक्योरिटी है, बिकॉज कोई भी कंट्री सीधा ऐसे अलाउ नहीं करती, उसके कंट्री के एक्सपर्ट्स बैठ के उसके बारे में पूरा रिसर्च करेंगे फिर ये डिसाइड करेंगे। सो या लाइक पलाश है यहाँ पे, हाँ हाँ पातू ना। या एंडिंग स्पीच है भाई। अच्छा अच्छा okay. So yeah, so this is the like the last moment of the GD. So I guess we have like solved all your doubts, and in case any one of you have any doubt, they can just mention that in the chat section or they can unmute themselves. Okay, like अभी so पूछ लो, it's today normal. we actually learned so many different things about the payments, like the debit card, credit card, RuPay, Mastercard, so many different things. हम हमेशा सिर्फ सीपी करते हैं या फिर सीएस कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में हमेशा रहते हैं, कभी पेमेंट सिस्टम्स को नहीं देखा, हाउ बैंकिंग सिस्टम्स वर्क, हाउ डिफरेंट सेक्टर्स इंटीग्रेट देमसेल्व्स विद these government institutions and organizations. So there are some moments in our life जहाँ पे हमें नए सेक्टर्स एक्सप्लोर करने चाहिए. So this was actually one of those sessions जो हमें बैंकिंग सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल द फाइनेंस हमें काफी कुछ इससे लर्न करने का चांस मिला है.